So first, let me introduce Dakti to you. This is a movement that seeks to reawaken the ancient wisdom knowledge system of India. Through this movement, we strive to bring ancient knowledge to the modern world. This includes the Society of Ancient Texts and Practices and engaging in discussion and debate, conducting research, hosting lectures, participating in competitions and workshops, and more. By doing so, the movement hopes to make ancient knowledge more accessible to everyone and to bring it to the forefront of today's society. That's why the motto of this research-based organization is also Sanskriti Gyan Ki, which means the culture of knowledge. So, Navchetna, what is this? Navchetna is an annual academic event and इस बार की इवेंट की थीम है आर्ट एंड हिस्ट्री एंड इसलिए हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं लेक्चर्स की जिसमें आज की सीरीज का थीम है पंच तत्व ऑफ इंडियन आर्ट मीन्स भारतीय कला के पंच तत्व के बारे में जिसमें हम हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर इंदिरा मालपका मैम नमस्कार डॉक्टर इंदिरा जी श्री औरबिंदो सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च पांडिचेरी में कार्यक्रम निदेशक हैं जो भारतीय संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में शोध और सीखने का बढ़ावा देती हैं कर्नाटक में तेलुगु शिलालेखों पर उनके शोध ने उन्हें पीएचडी की उपाधि दिलाई और वे वर्तमान में दक्षिण भारत में कला में महिलाएं पर अपने शोध के लिए अपनी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की प्रतीक्षा कर रही हैं वे वर्तमान में दाक्षी की स्वयंसेवक भी हैं इसी के साथ ही हम सब जानते हैं कि हमारी जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो हम लोग शुरुआत करते हैं माता सरस्वती का ध्यान करके तो फिर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी माता सरस्वती का ध्यान करें मेरे साथ या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मा पात सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जय मां शारदे। इसी के साथ ही मैं मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि अब अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। Yeah, thank you Devesh for a beautiful introduction in the Prarthana. As you did Prarthana for Ma Saraswati, Sharda, I want to do I just want to give my pay my salutations to all the gurus जो आपके गुरु लोग हैं और मेरे गुरु लोग हैं juniors, seniors, everybody whoever contributed in my today's speech क्योंकि किसी से बात करते करते हुए हम कुछ सीख लेते हैं they are indirectly our gurus. See, it's not like the age the place and language, but whenever we listen to someone when they are talking something related to our topic and our subject, then जो भी हमको कुछ भी सिखा रहे हैं हम लोग हमका गुरु बनते हैं तो I thank all those gurus today and my gurus, your gurus and all the gurus of the universe. And why I'm going to talk about the Pancha Tattvas of India now today. I have 35 faces and I can see Devesh only here. This happens every time, I think. I just request you to, show me your faces so that I can see and smile and talk to you. If not, people will think that I'm, just laughing to, smiling to myself. Okay? So yeah. मैं बार-बार नहीं पूछूंगी. I request everybody who can turn on your cameras. जो traveling में है, जो नहीं कर सकते, it's okay. But those who are sitting, comfortably can turn on your video so that I can see and there will be one interaction between you and me. So today, after this topic, I have given this title. After that, बहुत सारे लोगों ने मुझको पूछा था क्यों पंचतत्व करके एक नाम दे दिया आपने, क्या पंचतत्व है? तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इंडियन आर्ट में. मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी है, एपिग्राफी है, पैलियोग्राफी है, आइकोनोग्राफी है. तो ये सब चीजों के बारे में बात करती हूँ तो मुझे 64 आर्ट्स देना पड़ेगा, नहीं तो 108 आर्ट्स देना पड़ेगा और उससे ज्यादा भी देना पड़ेगा. See, for that thing, numismatics है, बहुत सारी चीजें हैं. तो what I wanted to discuss about within the given time is जो हम हर दिन देखते हैं, जो हम लोग हर दिन फील करते हैं, the tangible and intangible culture and heritage of our country. So उसका हम कैसे प्रयोग करें? As I can see everybody related to history and social sciences here. हम लोगों को जब भी कोई मंदिर या जब भी कोई म्यूजियम में एक आर्टिफैक्ट को देखने को मिलता है तो we feel that
connectivity, like yeah, it is historical, it is an antiquity, it's an antique object, and immediately people, the जो भी हमारे साथ रहते हैं वो लोग हमको देखते हैं कि या इसके बारे में बताओ, क्योंकि हम लोग हिस्टोरियंस हैं, ओके, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सभी लोग समझते हैं कि यस उनको पूछने से हमको कुछ मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, एक एपिग्राफ मिला, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला, तो लोग बोलेंगे कि हाँ इनसे पूछ लेते हैं तो हमको कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है. सी दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टू दिस सोसाइटी. लाइक हम लोग सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि इस समस्या को आप एक हिस्टोरियन के पास लेके जाओ तो वो लोग हमको कुछ आंसर दे सकते हैं. इट इज नॉट दैट वो देखकर आप बोलेंगे ये मौर्यन पीरियड है, ये कुषाण पीरियड है, ऐसा तो नहीं कह सकते. आजकल हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि साइंस से जुड़ गया है. केमिस्ट्री होना चाहिए, डेटिंग मेथड्स चाहिए, और इंस्क्रिप्शन के लिए पैलियोग्राफी चाहिए, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के लिए कंजर्वेशन मेथड्स चाहिए. ये सभी आते हैं तभी आप एक हिस्टोरियन बनोगे, राइट? ऐसा नहीं है कि ये देखकर मैं बोलूंगी 300-400 ईयर पुराना है तो कोई भी आपको मानते नहीं. सो हमको एविडेंसेस के साथ बात करना है. तभी मैं सभी हिस्टोरियन से कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने हिस्ट्री एक सब्जेक्ट लिया है. हमको लिटरेचर से भी डील करना पड़ता है, नॉट ओनली दीज थिंग्स, लिटरेचर भी डील करना पड़ता है, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, ऑल द सिस्टरली ब्रांचेस. When somebody talks about the Indus Valley civilization का खाने के बारे में बताओ, then we have to become the culinary specialist, right? So all these things मैंने आज तक इतना डाइवर्सिटी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देखा है. तो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, आपको क्या एक लिमिटेशन हो जाता है, बट हिस्ट्री हैज नो डोमाइन एट ऑल. तो आप किसी भी चीज को किसी भी चीज का हिस्ट्री आप बात कर सकते हैं. तो विदाउट फर्दर डू मेरे पास कुछ चीजें हैं, क्योंकि मैं इंडियन आर्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं पिक्चर्स नहीं दिखाऊं, सिर्फ बोलते जाऊं तो दैट्स नॉट जस्टिस. सो आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट नाउ. सो आई हैव entire screen here. Share. Yeah, let me share my screen now. Yeah. Yes, I have this. Share. Yes. Yeah, अभी इसको मैं yes. So this is the title for today. As I said, I think I have a problem in presenting it. Yeah. Let me go to the details. दिख रहा है ना? Yes, ma'am. But I don't know. मैं previous page पे जा नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे. 1 मिनट. So I have to. Yeah. Can you see this now? Yes, ma'am. Yeah. Thanks a lot. मैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा illiterate हूँ, तो कोई भी मुझे सिखाना पड़ेगा. Yeah. Now I don't think I can see you all, but I'm trying to present it here. So ये क्यों मैंने पंचतत्वास ऑफ इंडियन आर्ट करके एक टाइटल दिया है, बिकॉज आर्ट में मैं सबके बारे में बात करना चाहती हूँ. एट द सेम टाइम मैं बात कर रही हूँ आर्ट, आर्किटेक्चर, आइकोनोग्राफी, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी. व्हेन we are the historians, whenever we deal with one object or a subject, then we have the material culture. We have the pottery, we have the inscriptions, we have the sculpture. सभी को हम touch करके, yes, we can identify it and we can do the what you say dating methods, or you can by seeing that you can for dendrochronology, for trees को हम अगर dating करते हैं तो उसको देख करके हम approximately plus or minus date तो दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं. But when we talk about philosophy and spirituality, it is like there is no measure for that. हम लोग उसको measure नहीं कर सकते, right? क्योंकि it is something that is intangible and tangible में मैं difference क्यों करूँ कि एक materialistic culture है और एक unseen culture है. So that is the dialogue. Indian art is a dialogue between the seen and unseen cultures. As I again and again say, it is a vibrant dialogue between the seen and the unseen. और आर्ट किसी लिए डेवलप हुआ. Being a historian, we'll talk about the chronology of these things and when it started, where it started, and all these things. So, but whenever we talk about history, archaeology, or anything, people say that it all started with Indus Valley period, or we have some evidences, suggestions
that these things start with the Indus Valley period because we have some evidences. Again मैं यहाँ पे दोबारा आपको पंच तत्व का ये करती हूँ. देखिए यहाँ पे we have Indian art like seals, we have architecture, we have sculpture, and this is for epigraphy. मैं डोलावीरा का एक inscription यहाँ पे रखी हूँ. तो 3 चीजें यहाँ पे हमको मिल रहा है और 2 चीजें क्या है, philosophy and spirituality which we cannot see but we can feel. वो चीजें भी है, तभी तो हमको burial practices मिले हैं बहुत सारे, और इंडियन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट तो हमारे पास नहीं है क्योंकि अभी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ. एंड वी हैव द फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी as the underlying, threads. They are there, but as even today we cannot see philosophy and spirituality until and unless we feel those things. So ऐसा कहने से मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एक पंच तत्व मिल गया है, जहाँ पे मैं ये पशुपति झील है इसके बारे में बात कर सकूं, या ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो है इसके बारे में बात कर सकूं. एट द सेम टाइम आई हैव दिस स्कल्पचर like street-eyed, sculpture of so-called, people call him as a priestly personality because John Marshall identifies the Pashupati seal का जो आंखें है, John Marshall identifies these eyes with the ardhonmilit netra, half closed eyes, which are very very much suggested in the meditation. Okay, meditation pose में हमको मिलता है. तो the sculptor has taken this theme for the ardhonmilit netra, given the same thing here for the priestly personality also, and the way he is wearing that robe. All these things gives you an idea that he is a kind of priestly kind of person, but it is not for sure because we do not have any written evidence for this. But then आप अगर ये मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ एंड ऑल देखते हैं, ग्रेट ग्रैनरीज देखते हैं, और कुछ जगहों पे हमको आल्टर्स मिले हैं, फायर आल्टर्स मिले हैं. तो अगेन आई टेल यू, फायर आल्टर्स आर डिफरेंट एंड इंडस्ट्रियल फर्नेसेस आर डिफरेंट. वो उनका डिस्टिंक्शन हो चुका है ऑलरेडी. तो ऑल दीज थिंग्स है, तभी होगा कि फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी को वो लोग फॉलो कर रहे थे, हमारे एंसेस्टर्स, इंडस वैली के एंसेस्टर्स फॉलो कर रहे थे. आप ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो को देखिए. हम सभी को पता है कि इंडस वैली पीरियड में वी हैव वन वेल, हर घर में एक कुआं है, राइट. तो हर स्ट्रीट के अंत में एक पब्लिक वाला कुआं होता था. तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रेट बाथ? तो उसीलिए स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया है, अभी भी कर रहे हैं और भी करेंगे आगे, कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कनेक्टिंग देम रिलीजियसली, और दिस इज अ communal property. People are coming there, talking, spending time together, and their kitchens and all are open places. So all these things suggest that there is a kind of philosophy and burial practices, mother goddess worship and nature worship, like people tree and banyan tree. आपको उसमें मिल जाएगा, and biodiversity you will get this from this seal and all. You can see fish here, hippopotamus मिलेगा, और rhinoceros and elephant, tiger, deer, सभी मिल रहा है. तो बायोडाइवर्सिटी से लेके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के, आर्किटेक्चर को लेके, स्कल्पचर को लेके, वी हैव ऑल दोस थिंग्स कवर्ड. इट इज नॉट पर्टिकुलरली पर्टाइंड और कन्फाइंड टू वन एलिमेंट. इवन आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को ले रहे थे, भरपूर था, वहां पे भी आपको जो चाहिए वो सब चीजें मिल रहे थे. देन बट व्हाट हैपेंड इज, ओनली इसका स्क्रिप्ट हम नहीं जानते, उसके वजह से शायद हम नहीं पढ़ सकते हैं. बट चित्रलिपि जो है बुक्स से भी, लिटरेचर से भी ज्यादा बात करा सकता है. तो मैं अगर बात करना चाहती हूँ चित्रलिपि को बेस करके, तो मैं बोलूंगी कि ये पंच तत्व में जो देख रही हूँ, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी इन इंडस वैली पीरियड, यहाँ पे भी हमको मिल रहा है. इंडस वैली पीरियड ऑल्सो इज नॉट इनकम्प्लीट, इट इज अ कंप्लीट अमालगमेशन ऑफ इंडियन आर्ट. तो बात यह है कि अभी 100 साल हुआ है, और 100 साल में और भी अच्छे हमको ये रिलीजन के बारे में या पॉलिटिकल, और भी अच्छे पॉलिटिकल डिटेल्स मिल जाना चाहिए, मिल जाएंगे. एंड देन जब क्रोनोलॉजिकली अगर मैं एक चीज को बता सकूं, तो द सीड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द वेदास. एक्चुअली जब भी मैं सीड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहती हूँ, तो इमीडिएटली समबडी वुड से दैट दोस आर नॉट द सीड्स. वो टाइम पे ऑलरेडी trees है, because Indian art is already there. It is very strong at that time. That is the reason why, क्योंकि कुछ भी रातों रात evolve नहीं हो जाता है. You have to give it some enough and comfortable time for something to evolve. Like टेम्पल आर्किटेक्चर देखिए, स्कल्पचर्स देखिए, आइकोनोग्राफी एंड आप पिलर्स को देखिए. पिलर्स पहले कैसे बनते थे, सिर्फ टेम्पल कैसा बनता था, भूमिजा स्टाइल आप जानते होंगे हिस्टोरियंस, एंड देन बाद में आप द्राविड़ा, नागरा, वेसरा स्टाइल्स देखिए, कितना एवोल्यूशन है. एक पिलर को देखिए, एक सिंपल सा पिलर, एक कॉलम, स्क्वायर कॉलम जो है, अभी ये साउथ इंडियन याली जैसे कैसा, कितना टिपिकल और कितना एलोबोरेट हो गया, कितना एवॉल्व हो जाता है. सो इन इंडिया स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट एवोल्यूशन. Spirituality is practiced
continuously, so that you are not supposed to stop at one particular point and you keep on evolving, like you keep on developing yourself. उससे आगे क्या करना है, उससे आगे क्या करना है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेटीरियलिस्टिक एंड नॉन मेटीरियलिस्टिक जो आइटम्स है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज जो है, दोनों के बीच में जो डायलॉग चल रहा है वो क्या होता है, ह्यूमन स्पिरिट ऑलवेज वांट्स टू कनेक्ट विद समथिंग ग्रेटर देन हिमसेल्फ. Then once elders, gurus, and then some spiritual guru, and then after that we will seek the God, and then we will see the divinity. उससे भी ज्यादा, उससे भी आगे. तो इंडियन आर्ट, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी कुछ भी ले लीजिए, उसमें कभी ये कन्फाइनमेंट नहीं रहता है कि हाँ मैंने आज एक स्कल्पचर बना दिया, मैं इससे खुश हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ. नेक्स्ट मेरा इंटेंशन ये होगा कि मैंने आज एक इतना अच्छा स्कल्पचर दिया है, तो कल मैं इससे भी अच्छा और कुछ चीजें ऐड करके और इससे भी अच्छा एक मैं आइटम दे सकूं, लाइक स्कल्पचर को मैं बना सकूं. तो सीड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट थिंक इट स्टार्टेड हियर, बट ओनली थिंग इज दैट वी हैव लॉट्स ऑफ लिटरेरी एविडेंसेस विच चाहिए था जिनको कि डेवलपमेंट ऑफ दी ओरल ट्रेडिशंस. ओरल ट्रेडिशन में हमारा एजुकेशन चलता था, ये सभी को पता है. तो इन चीजों को एक विजुअल आर्ट फॉर्म देने के लिए लिटरेचर बहुत काम हुआ था. एंड एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहिए हमको. अगर इंडियन आर्ट को समझना है इन अ कंप्लीट मैनर, so we have to understand the education system which was prevailed during the ancient period in India, at least to the Vedic period I talk. So here हमारा लिटरेचर ऐसा बात करता है कि हमारे लिटरेचर के एक एक दो दो फ्रेजेस में हम लोग 2-3 दिन बात कर सकते हैं. स्कॉलर्स उसके ऊपर बहुत कुछ लिख भी सकते हैं, कमेंटरीज बहुत आ चुके हैं. तो ये जो आपके सामने मैं श्लोक दे रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं. मैं कोई स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पढ़े, क्योंकि आई नीड टू फील योर प्रेजेंस. प्लीज. Okay, ma'am, let me read. Devesh, not you. Someone else. Okay, if anyone wants, he or she can. Yeah, anybody can, please. If not, Devesh, you do that. Yeah. You want me to read the Sanskrit shloka? Yeah. I just want to, your participation. Please read it. Okay. You might be doing it already. पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Very good. Thank you. What's your name? Akshat. I know. Great. The director himself is talking, but not the students. Okay, no issues. So here, Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Our literature says, our Indian literature says that everything in India is Purnam. It's not Asampurnam. It is Purnam and that is Purnam. Here, यहाँ वहाँ क्यों बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, एंड दैट सब्जेक्ट इज कंप्लीट, इट्स नॉट इनकम्प्लीट. व्हाट एवर सब्जेक्ट यू टेक, आई कैन टॉक अबाउट दिस. तो ऐसा है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं. प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया था कि एक आपके पास दिया है, वो दिया के साथ यू आर ट्राइंग टू लाइट सो मेनी अदर दियास विद द पर्टिकुलर दिया यू हैव. तो एक एक दिया को आप जलाते हुए उसका ब्राइटनेस जो है बढ़ जाता है. द एरिया सराउंड यू विल बिकम मोर ब्राइटर. इट इज नॉट दैट इनका कांति जो है दूसरे दियाओं में देने से इसका कांति कम नहीं हो जाता है. तो इंडियन सब्जेक्ट्स ऐसे है कि ये पूर्ण से कुछ भी पार्ट आप ले लोगे तो उसमें कुछ कमी नहीं रह जाएगी. लाइक इट विल बी संपूर्णम देयर. इट्स नॉट असंपूर्णम. जो यहाँ से बाहर गया वो सब्जेक्ट भी संपूर्णम है. ये इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, हमने दुनिया को योगा दिया, मेडिटेशन दिया, आयुर्वेद दिया, और स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी तो बोलना नहीं चाहिए, बुद्धिज्म एंड रिलीजन को तो हमने दूसरे कंट्रीज को दिया है. देन जब भी वो लोग हमारे कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि योगा करने से मेरा ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, मेडिटेशन से अच्छा हुआ, आयुर्वेद से कुछ अच्छा हुआ, तो इट इज नथिंग बट वी आर शाइनिंग ब्राइटली देन एवर. इससे पहले जितना ब्राइटनेस था उससे भी ज्यादा हम लोग ब्राइट हो रहे हैं. तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये श्लोक एक दिया है. और ऐसे ईशावास्योपनिषद में दूसरा ये है कि एक श्लोक जो मैं बार बार बोलती हूँ, तेन त्यक्तेन भुंजीदा मागृदा कस्यस्विद धनम. ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट एज में होता है और पीएचडी करते टाइम पे होता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो वी टेंड टू रिक्वेस्ट एंड बारो दैट फ्रॉम समबडी, एंड देन until and unless we return that back, हमको चेंज नहीं मिलती. जो भी हो, पैसे हो या बुक हो, कुछ भी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, अच्छे से रिटर्न करे तब तक हम लोगों को शांति नहीं रहती है. तो हमारा लिटरेचर हमको ये कहता है कि यहाँ पे
तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृदा कस्यचित् धनम। धनम यहाँ पे ओनली वेल्थ नहीं है, धनम यहाँ पे है कि किसी और का नॉलेज मत लो, किसी और का थीम को कॉपी मत करो, कॉपी करोगे तो भी उनका कुछ अच्छे से रेफरेंस दे दो। तो मैं प्लेजरिज्म के बारे में बात कर रही हूँ। सो डू नॉट प्लेजराइज व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग। तो इससे पहले ये नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने किया है, तो बट लिटरेचर सेज दैट कि आप लोग कहीं से भी कॉपी नहीं करोगे। तो ये फ्रेज को मैंने ऐसे इसीलिए लिया था कि इसमें हमारा पूरा लिटरेचर को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कैसे? अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जब आप गुरुकुल में पढ़ते थे, अर्ली एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर्स जब पढ़ते थे, तब उन लोगों को ये पंच तत्व के बारे में पूरा आइडिया दिया जाता था। लाइक इफ दे आर स्टडीइंग अबाउट पृथ्वी, इट इज नॉट पर्टाइंड टू इंडिया, ओनली इंडिया के बारे में नहीं था, इट वाज अबाउट द एंटायर ग्लोब। If they were talking about the Akasha, then they were talking about entire Akasha, and the पूरा जो spheres है जहाँ पे अभी विमान एरोप्लेन्स एंड ऑल जाते हैं, पुष्पक विमान एंड ऑल, we have the concepts of मेघदूतम। अगेन कालिदास ने बताया कि मेघदूतम में हम लोग मैसेजेस भेजेंगे, बट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्टेम्पररी पीरियड पीपल माइट हैव सोचे होंगे कि कालिदास ने क्या लिख दिया, मैसेजेस कैसे जाएंगे, वो है ये है, बट बाद में तो प्रूव हो गया ना कि या जो उन्होंने एनविजन किया है वो सच है। हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं, हम लोग कुरियर कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इमरजेंसी कुरियर जाते हैं, हम लोग भी फ्लाइट में जा रहे हैं, तो नॉट ओनली द मैसेजेस बट पीपल आर ट्रैवलिंग। तो दीज थिंग्स हमारे लिटरेचर में बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले से ही है, बट हमारे एंसेस्टर्स जो है स्कूल्स में पूरा सब्जेक्ट पढ़ते थे, इट वाज नॉट पर्टिकुलर टू वन सब्जेक्ट। जल के बारे में पढ़ते हैं तो पूरा जल के बारे में पढ़ते थे, जल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अग्नि के बारे में पढ़ते हैं तो अग्नि, यूनिवर्सल अग्नि के बारे में पढ़ते थे, लावा के बारे में पढ़ते थे, और इंसान के अंदर जो अग्नि होते हैं, आयुर्वेद के मेडिसिन में जब पढ़ना होता है तो वात पित्त जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, तो यूनिवर्स के बारे में पढ़ते थे। इट वाज नॉट लाइक वन पर्टिकुलर ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ऑल, बट देयर बेसिक एजुकेशन was based on these things. When वायु, स्ट्रेटोस्फीयर, अभी पोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो लोग बहुत पहले से ही पढ़े थे। एंड आई विल टेल यू द एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग ऑल दीज थिंग्स इन एडवांस, कि आप एक बड़े ही यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म में यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ऑर्गेन्स को अप्लाई कर सकते, वास्तु को अप्लाई कर सकते, हस्त मुद्रास को अप्लाई कर सकते, एंड स्पिरिचुअलिटी को भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया। तो पूरा पढ़ करके उसके बारे में बात करने के लिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सब्जेक्ट अच्छे से पता है। तो यहाँ में एक टेबल दिया है, देखिए, अग्नि रिप्रेजेंट्स आइज, लाइक वायु फॉर स्किन, आकाशा फॉर ईयर्स, पृथ्वी फॉर नोज एंड जल फॉर टंग। एंड देन षड्रुचियों को भी ये पूरा तत्व दिया गया है। अगर ये वास्तु एक सब्जेक्ट में देखेंगे वास्तु के लिए, तो देखिए अग्नि स्टैंड्स फॉर साउथ डायरेक्शन, वायु इज फॉर वेस्ट, आकाशा इज टू द ईस्ट, पृथ्वी फॉर सेंटर एंड जल फॉर नॉर्थ। तो हम लोग आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? अभी हम लोग को बोलेंगे कि कोई आयुर्वेद का स्पेशलिस्ट है, वो सिर्फ आयुर्वेद के बारे में बात कर सकता है, हिस्टोरियन है सिर्फ हिस्टोरी, उसमें भी अभी कन्फाइनमेंट्स है कि मैं एपिग्राफी जानती हूँ, मैं न्यूमिस्मेटिक्स जानती हूँ, मैं मॉडर्न हिस्ट्री जानती हूँ या हिस्टोरियोग्राफी, ये सब हम लोग बोल देते हैं कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, इसमें मैं स्कॉलर हूँ, बट वो दिन में जो पढ़ते थे, इट वाज नॉट पर्टिकुलर पर्टेंट टू वन सब्जेक्ट, इट वाज फॉर द वेल बीइंग ऑफ द यूनिवर्स। तो ये स्पिरिचुअलिटी में हम लोग कैसे लें? तो according to yoga, as you can see here, the aim of sadhana is to have mastery over oneself. So oneself में क्यों मास्टरी पाना चाहिए? तो क्योंकि जो भी करना है, आपको वॉर भी करना है, तो अपने आप के साथ करके जीत के फिर बैटल फील्ड में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू defeat yourself, defeat your egos and defeat your whatever people say in the spirituality and philosophical terminology, that you have to suppress the ego or you have to express the ego. So there are several conditions and stages in evolution of that. So जब हम लोग ये यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ पृथ्वी को देना चाहते हैं तो ठीक है, बट स्पिरिचुअलिटी को देना चाहते थे, हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे? तो पंचभूत स्थलम्स जाकर के वहां पे योगिक प्रैक्टिस करते थे। वो लोग एक प्लेस से दूसरा प्लेस जा करके यहाँ पर साधना करके एक एक तत्व को अपनाते थे। लाइक भूमिलिंगम इज इन कांचीपुरम, वर्णलिंगम त्रिची, अग्निलिंगम इन तिरुवन्नामलाई, वायुलिंगम इन श्रीकालाहस्ती एंड आकाशलिंगम इन चिदम्बरम। ये पूरा टेम्पल्स है जो मैंने अभी यहाँ पे नाम दिया है। चार टेम्पल्स रहेंगे, 4 मंदिर हमारे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में है, एंड श्रीकालाहस्ती इज इन आंध्र प्रदेश। सो ऑल दीज पंचभूत स्थलम्स एक
accomplished योगी, accomplished साधक बनने के लिए तीर्थ यात्रा करना पड़ता है। वो दिन में टूरिज्म था, वो दिन में हेरिटेज टूरिज्म है। अभी हम लोग कुछ नया दुनिया को नहीं बता रहे कि हम लोग हेरिटेज टूरिज्म कर रहे हैं। उस दिन में भी लोग जाते थे काशी और वहां से आते थे रामेश्वर, एंड यहाँ से पूरा परिक्रम खत्म होने से बोलते थे कि या अभी कुछ भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चारों आश्रम में जो लास्ट संन्यास आश्रम होता है वो टाइम पीपल यूज टू स्पेंड दैट टाइम फॉर हेरिटेज टूरिज्म इन द एंशिएंट डेज, ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। सो मैं जैसे आपको ये पर्सनल लेवल में बता रही हूँ, आर्ट को पर्सनल लेवल में इंडियन स्पिरिट को बता रही हूँ, पर्सनल लेवल में फिलोसफी बता रही हूँ थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स. Again, when it comes to your building, your house, your school or something, then first the person whom we consult is the Vastu person, okay, Vastu specialist. And then when it is done, you are looking into some broader section of this, which is a temple. So इस ये घर का building हो गया, and okay, then you have to go to the temple to get the complete sadhak stage after your sannyas ashram, or even गृहस्थ आश्रम में भी हम लोग मंदिर देखने जाते हैं हमारे फैमिली के साथ, एंड ऑल्सो पिलग्रिमेज टूर्स एंड ऑल. सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वर्ल्ड स्कॉलर्स आर नाउ टॉकिंग अबाउट आर्ट ऑन डिफरेंट लेवल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क व्हाट इज योर हेरिटेज, देन हम लोग इमीडिएटली बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लाइक ताजमहल बोलेंगे, नहीं तो चिदम्बरम टेम्पल बोलेंगे, नहीं तो तंजावुर टेम्पल बोलेंगे, कुछ भी जो भी हो हमारा पर्टिकुलर हेरिटेज मॉन्यूमेंट के बारे में बोलेंगे, नहीं तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आर्ट फॉर्म्स बोलेंगे, तो टैंजिबल इंटैंजिबल कल्चर के बारे में बात करते हैं. But to understand art in the international level, one should understand it in a personal level first of all. So what is your heritage? What is your art? What is your art form? See, for example, I'll tell you mine. I'm from Andhra Pradesh. So I'm from a Telugu community, like I'm a Telugu girl. So जब भी कोई तेलुगु के बारे में बात करते हैं, automatically my inclination goes towards that, because वो अपनापन होता है, right? So that is what our heritage is. It is not that वो मेरा है, वो मेरे को दे दो, but it is, I can feel it. I can feel the intangible, heritage, and I can, whenever I see somebody talking about Andhra Pradesh का जो heritage monuments के बारे में बात कर रहे हैं, या तेलंगाना का बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हाँ मैंने देखा, हाँ मुझे पता है, हाँ मेरे एरिया का है. जब भी आप किसी से बोलेंगे हाँ मैं मध्य प्रदेश से हूँ या राजस्थान से हूँ, तो लोग पहले पूछेंगे कि व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स इन योर एरिया. आपको आर्ट को ऐसा समझना चाहिए, पर्सनल लेवल में समझना चाहिए, जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है. तो अगर अभी मैं ये डिफरेंशिएट नहीं करना चाहती हूँ, मगर मैं हिंदू होकर के जितना टेम्पल का नाम दे सकती हूँ, और दिल्ली में होकर के जितना टूम्स के नाम से दे सकती हूँ. So that is our archaeological heritage. That is our, ये जो हम लोग दे रहे हैं, that is on different levels, personal level, regional level, state level, national level. जब आप यूनेस्को को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then that will be the international level. So heritage tourism and heritage culture and protection के बारे में, जब heritage conservation के बारे में बात करते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे, आपको पहले आपका पर्सनल हेरिटेज को समझना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए. बहुत सारे लोग आज अपने मातृभाषा में बात नहीं करते, मातृभाषा का वर्णमाला नहीं जानते, एंड दे कांट रीड एंड राइट इन देयर ओन लैंग्वेज. सो आप कंजर्व कहाँ कर रहे हैं अपने हेरिटेज को? तो दीज थिंग्स, उसीलिए इंटरनेशनल हेरिटेज एंड नेशनल स्कॉलर्स जब भी बात करते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर के, दे से दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई आर्ट इन योर पर्सनल लेवल. वो भी किस लिए करना चाहिए? पर्सनल लेवल में इसीलिए करना चाहिए कि अप्रिशिएट करने के लिए आपको आइदर यू हैव टू स्टार्ट विद द इंटरनेशनल हेरिटेज एंड कम डाउन टू द पर्सनल लेवल, एज हमारे गुरुकुल में जो सिखाते थे, पहले पूरा पृथ्वी के बारे में सीखो, बाद में छोटी छोटी चीजों के बारे में बताओ. नहीं तो हम लोग अभी उतना एक संताग्राही द्विसंताग्राही हमारे बीच में नहीं हो सकते, सिर्फ इंस्टा और फेसबुक देख करके पढ़ रहे हैं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे जाएंगे, देन रीजनल लेवल पे जाएंगे, देन स्टेट लेवल पे जाएंगे, देन नेशनल लेवल पे जाएंगे, देन आफ्टर यू विल गो टू द इंटरनेशनल. दिस इज ऑल अबाउट अप्रिशिएटिंग आर्ट. जितना हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में प्रोपगेट करेंगे और कंजर्व करेंगे. इट इज नॉट दैट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर टेम्पल एंड yes I have done, I have given my bit to the society. No, that is not the thing. आप वैंडलिज्म को रोक सके, आप ऐसा दक्षी जैसे एक अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो, एंड विद दीज थिंग्स व्हाट यू हैव टू डू इज टू प्रोपगेट एंड प्रिजर्व. Okay, you have to popularize also. So इसके बाद में हम लोग जब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना चाहते हैं, तो इंडियन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी बुद्धिज्म में, जैनिज्म में कैसा है, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ. इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू टॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम.
बुद्धिस्ट आर्ट को ले करके हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं कि लिटरेचर था, जातका स्टोरीज एंड बुद्धिस्ट एंड जैन डॉक्ट्रिन्स थे, and then you have the art forms and you have the very big beautiful stupas and relics रखे गए जहाँ पे वो सब चीजें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. Though you can go and visit the monument. So see, these panchatattvas are again there in Buddhism, again there in Jainism, and nothing new we are writing about Buddhism and Jainism these days. Whichever is already existing, we are just bringing a few points. क्योंकि मेरा एक माउंट देखने का पर्सपेक्टिव अलग होगा और आपका देखने का अलग होगा. मैं जब नॉर्थ इंडिया जाती हूँ वहाँ का रीजनल स्टाइल्स और ट्रेडिशनल लोकल हिस्ट्री समझने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट कोई गाइड होकर के मुझे जब समझाएंगे तो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड आई कैन अप्रिशिएट इट वेल. तो ये ऐसा होगा कि इंडियन आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए बस आपको फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है. बस आप उसको देखोगे, तुरंत आपको लगेगा कि वाह क्या बना दिया इन्होंने. और बात यह है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करते हैं आगे, बट बुद्धिज्म में ऐसा है, ये पंचतत्व हम ऑलरेडी इंडस वैली पीरियड में देखे हैं. फिर लिटरेचर में हमने देखा है कि म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर का शुरुआत कैसे हुआ, ओरल ट्रेडिशन को विजुअल पिक्चर कैसे दिए थे, एक विजुअल आर्ट के जैसे कैसा लाया गया, ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं. देन मैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग देना चाहती हूँ कि कैसे पेंटिंग हमारे अंदर के स्पिरिचुअलिटी को बाहर ला सकता है. तो जैन श्रमणा ट्रेडिशन वाले बच्चे यहाँ पे है, तो आई अंडरस्टैंड दैट दे विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. दिस इज अ फेमस पद्धति इन जैनिज्म. वी कॉल इट एज षट्लेस्य पद्धति. ओके, षट्लेस्य पद्धति, ये मैं 2-3 बार जब भी बात करती थी, मैंने सर लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि इसको आप लोग एकेडमिक करिकुलम में इंक्लूड करें, क्योंकि स्कूल में जब भी बच्चे बहुत ही बदमाशी कर रहे हैं, तो आप अगर कॉलेज में, स्कूल में ये दिखा के आप उनको बचपन से इनकलकेट करोगे, तो यू कैन सी द चेंज, यू कैन सी द ग्रेडेशन ऑफ दिस, लाइक कैसा डेवलप हो रहा है, क्या क्या हो रहा है. सी द पर्सन हु इज इन ब्लैक हियर, यू कैन सी द पर्सन, ही इज अपरूटिंग द ट्री फॉर फ्रूट्स. एंड ये बहुत ही गंदा बच्चा है. ओके, सो व्हेन द पर्सन हु कट्स द ट्री फ्रॉम इट्स ट्रंक, his soul is colored as dark blue, like his soul को अभी बहुत आगे जाना है, बहुत ही अच्छा बच्चा बनने के लिए बहुत ही स्टेजेस है. एंड देन द पर्सन हु इज इन ग्रे कलर, थोड़ा सा डार्क कलर में है, वो सिर्फ एक ब्रांच तोड़ रहा है जिसमें फ्रूट्स हो. और एक जो है, जो हम येलो कलर में देख रहे हैं, तो इसको हम लोग देखें तो इसके हाथ में वो एक बंच ऑफ फ्रूट्स कट कर रहे हैं, वो भी ट्री के ऊपर जाकर के. फिर एक इंसान जो हम पिंक में देख रहे हैं, वो जस्ट ही प्लक्स राइट फ्रूट फ्रॉम द ट्री. और ये जो शांत से आराम से नीचे बैठ के जो फ्रूट नीचे गिर रहा है वो लेकर खा रहे हैं, वो होगा संत साधु. हम लोग तो ऐसा नहीं बन सकते, मगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ से हम लोग ये होकर के पिंक तक आके भी रुक गए ना, देन दिस पेंटिंग, दिस वॉट एवर जैनिज्म इज टीचिंग यू, वो सब जस्टिफाई हो जाएगा. बिकॉज whatever religion in India, वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, एनीथिंग, एंशिएंट के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कोई भी रिलीजन हो, वो हमको अच्छा सोल बन के रहने के लिए ही बोलेगा. तो ये तो ठीक है, अभी के जनरेशन में मैं भी नहीं बन सकती हूँ, बट वी कैन ट्राई अप टू पिंक, राइट. सो एक पेंटिंग यहाँ लिटरेचर में जो हम लोग लिख रहे हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, तो सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, तो ये पिक्चर को देख के हम लोग उसके बारे में बहुत देर बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? यस और नो? यस मैम कर सकते हैं. थैंक्स. कभी हाँ ना कुछ बोलिएगा. तो ऐसा है कि हम लोग पूरा जैनिज्म जो हमको सिखाना चाहता है, फर्स्ट आप बेसिक स्टेप्स ले लीजिए, बाद में क्या डॉक्ट्रिन्स है, बाद में क्या कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे हम लोग डॉक्ट्रिन को प्रोपगेट करें, कैसा हम लोग सबके दिमाग में उसके बारे में सीड्स डालें, ये सब बाद में सोचेंगे. पहले हम लोग उसको अपनाना चाहिए ना, वो जो पेंटिंग के थ्रू या स्कल्पचर के थ्रू या टेम्पल के थ्रू, बस आपको आर्ट अप्रिसिएशन आने से ही ये चीज होता है. और जब ये हुआ क्रोनोलॉजी में, जब यहाँ पे एक छोटा सा क्रोनोलॉजी लाने के लिए ट्राई किया है, जब तक हमारा बुद्धिज्म एंड ऑल, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड दोस थिंग्स. बट नाउ व्हेन वी कम टू द मिडिवल पीरियड, व्हेन वी हैव ब्यूटीफुल आर्ट इन फ्रंट ऑफ अस, हम लोग वो आर्ट को कैसे समझते हैं? व्हेनेवर वी गो टू वन मॉन्यूमेंट, वन टेम्पल, वन म्यूजियम और एनीथिंग, जब भी हम लोग आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो 2 चीजें हमको मिलता है. वन इज वॉव, द सेकंड वन इज पिटी. लाइक हम लोग आइदर कंस्ट्रक्शन देखेंगे और डिस्ट्रक्शन देखेंगे.
कभी एक टूटा हुआ स्कल्पचर और टूटा हुआ डैमेज्ड टेम्पल, डिटीरियोरेटेड इंस्क्रिप्शन या कुछ हम देखते हैं तो हमको लगता है अरे यार कितना खराब कर दिया, कितना गंदा कर दिया, कितना डैमेज कर दिया, कितना खराब हो गया, बिकॉज नेचुरल कैलामिटीज एंड एटमॉस्फेरिक रीजंस भी होते हैं ना डिटीरियोरेशन के लिए। हम लोग पिटी कर सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं कि अरे क्या हो गया। बट जब भी आप एक अच्छा ब्यूटीफुल कंजर्व किया हुआ लाइव म्यूजियम या लाइव टेम्पल जो आप देख रहे हैं तो हमको लगेगा कि अभी भी बोलते हैं तंजावुर का इतना बड़ा गोपुरम कैसे बना, जब हम लोग आज एक छोटा सा घर नहीं बना सकते। छोटा सा घर बनाते हैं तो 3-4 साल में हमको क्रैक्स दिख जाते हैं तो हार्ट पेन हो जाता है। जो ओनर होता है ना उसका, बहुत सारे लाखों रुपया खर्च करके जो बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। तो इधर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं और डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, हम लोग सृष्टि स्थिति लय देख रहे हैं एक टेम्पल का। But I tell you, whenever you see the temple, you have many other things to understand. Again, I have tried to give you the Panchatattvas here, Panchatattvas of Indian art here. First is creation. Creation में ऐसा है कि आपको पूरा का पूरा एवोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि पिलर्स, जो प्लेन पिलर्स से लेकर के आप याली पिलर्स, विजयनगर नायका पीरियड के पिलर्स तक देखेंगे। और फिर एक भूमिजा टेम्पल, सिंपली अपना ना सांची नंबर 36 और 32 वो टेम्पल हम देख रहे हैं तो सिर्फ 4 पिलर होंगे, एक टैचड रूफ होगा, फिर बाद में वो रूफ ब्रिक वाला रूफ हो जाता है, फिर पानी जाने का रास्ता। एवोल्यूशन, थिंग्स हैव बीन एडेड, एक के बाद एक ऐड करते 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 हुए बड़े बड़े प्रकार, बड़े बड़े गोपुरम्स, बड़े बड़े शिखरास, और लोग कॉम्पीट करके इतने बड़े बड़े लोग इन द सेंस किंग्स, क्वींस, ट्रेडर्स, जो भी हो, इंडिविजुअल डोनर्स एंड ऑल, just to attain religious merit, just to attain spirituality, beyond something, beyond my own imagination, beyond my own requirement. अभी सोचिए आप एक घर बना रहे हो अपने मम्मी पापा के लिए, हम सभी बनाएंगे घर अपने मम्मी पापा के लिए। जब बनाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि दुनिया के सारी कंफर्ट्स उनको दे सके अपने हिसाब से, लाइक हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, द बेस्टेस्ट थिंग्स लाइक 1 bedroom फॉर माय पेरेंट्स एंड 1 for the one as a study room, 1 balcony to sit and talk, chit chat and all these things. एंड जब हमारा एंसेस्टर्स भगवान के लिए जाके ये यूनिवर्सल गॉड के लिए एक इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा बनाना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के लिए हम लोग खुद के लिए 3-4 स्टोरीड बिल्डिंग बना रहे हैं तो गॉड के लिए उससे थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा ना। एंड जब घर बन जाता है आप घर को खाली रखोगे, सिर्फ दीवार और बेड और रसोई यही नहीं रहता ना। यू हैव एडोरेशंस, कहीं कहीं से हैंडीक्राफ्ट्स लाओगे, कोई भी जगह देखने जाओगे तो स्कल्पचर्स, अगर आप हिस्टोरियन हो, हिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट्स आपको अच्छा लगे तो यहाँ से जाओ वहां से जाओ, कुछ आइटम लेके आओ एंड घर को अच्छे से सजा लेते हैं। सजाते हैं घर को इतना तो आप मंदिर को कितना सजाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है सिर्फ अबंडेंस के लिए मंदिर में स्कल्पचर्स डाला है, अबंडेंस के लिए प्राकारम दिया है, अबंडेंस के लिए बड़ा गोपुरम बनाया है लोगों के पैसों से, बिकॉज we are building something for the universal person, universal spirituality or the cosmic divinity there to reside. वहां पे जाके भगवान रहेगा, तब कितना उत्कृष्ट बिल्डिंग बनना चाहिए। तो ये वाला बेसिक थीम था। इट इज सो सिंपल, वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये इनकलकेटेड है हमारे इसमें है कि इसीलिए हम लोगों को एक मंदिर देख के वाव करके इतना नहीं लगता, जैसे फॉरेनर्स आएंगे देखेंगे तो बोलेंगे कि वाह कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कैसे ऐसा बना है। तो वो लोगों को क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उसमें इनकलकेटेड नहीं है, अपने अंदर नहीं होगा, तो वो लोग बोलेंगे कि बहुत ही बड़ा है। अपना भी चर्चेस, उन लोगों का भी चर्चेस बहुत ही बड़े होंगे, मगर इतना आर्टिफैक्ट्स और इतना ऑर्नामेंटेशन और एडोरेशंस नहीं रहते हैं। तो जब भी देखते हैं ऑस्ट्रक हो जाते हैं, इज इट और नॉट। जब भी फॉरेनर्स आते हैं तो दे गो फॉर द साउथ इंडियन ट्रिप और दे गो टू द मॉन्यूमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया एंड दे से लाइक सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, एंड वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो नाउ we spoke about the creation where kings, queens, traders and other people, individual donors competed with each other to make a beautiful building, to make a sculpture or to write an inscription, all these things. But when it comes to appreciation, I tell you in brief, art appreciation जो है हर एक पर्सन में, हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। एक छोटा सा बच्चा एक म्यूजियम या टेम्पल कुछ देखेगा, उसको उसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं पता, जस्ट he'll go for an excursion, और हर दिन के जो होमवर्क एंड असाइनमेंट से थोड़ा सा मैं पिकनिक जा रहा हूँ, मैं एक मंदिर देखने जा रहा हूँ एंड वहां पे जाके बस इतना ये तो करेगा एंड देन he comes back with rejuvenation। वहां पे आपको he'll get the spiritual attainment, ananda, but he doesn't know it, he is not aware of it. But when an engineer goes to a temple, that is one different feeling and emotion,
When historian goes to the temple, when we people go to the temple, we see the chronology, we see the king, and we look for the inscriptions, we'll see the sculptures, iconography. हम लोग ये सब देखते हैं. जब एक आर्कियोलॉजिस्ट जाएगा, आर्कियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट ये देखेंगे कि वो स्कल्पचर जिससे बना है वो ग्रेनाइट है, वो कौन सा स्टोन से किया है, स्टीटाइट है, क्या स्टोन यूज किया है उसमें, और इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्या थे, इंक्लूसिव है कि मोर्टर एंड ब्रिक यूज किया, मोर्टर मड यूज किया, और कैसे ऐसे बनाया. एंड हिस्टोरियन ऐसा नहीं देखेगा. Similarly, a philosophical person goes there, he'll definitely go for the spirituality and philosophical, he want to bring out some more philosophical content from his own self. So he'll visit that temple for the philosophical, feature. लिटरेचर वाले जाएंगे तो अलग होगा, एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लाइक म्यूजिक एंड डांस वाले पीपल जो लोग परफॉर्म करते हैं वो लोग जाएंगे तो वी हैव ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ऑन द वॉल्स, डांसिंग एंड म्यूजिक थिंग्स, so that we can see the musical instruments, we can see the even अभी disappear हो गया, so नागवीणा करके एक है, sculptures में दिखता है कि एक dancer, she is musician come dancer will be performing with both the things. They'll hold the instrument in hand and perform, so that the musician will take that. And the devotee when he goes to the temple, उसको किसी भी चीज से मतलब नहीं है. हमारे हर घर में एक ऐसा devotee होता है ना, मम्मी, दीदी, पापा, ऐसा कोई होते हैं कि मंदिर जाकर के सिर्फ प्रणाम, अपना सैल्यूटेशंस देते हैं, फिर उनके महिमाओं के बारे में गाते हैं और बोलते हैं 2-3 लोगों को और वापस आ जाते हैं. उनको ये किसी भी चीजों से मतलब नहीं है, उनको आर्ट अप्रिसिएशन नहीं पता, बट ओनली थिंग इज दैट दे आर डूइंग द स्पिरिचुअल अप्रिसिएशन. स्पिरिचुअल अप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन आर्ट अप्रिसिएशन, बिकॉज एंड ऑफ द डे स्कल्प्टर उसीलिए स्कल्पचर बनाया भगवान का. एक डोनर जो है, एक किंग जो है, उसीलिए एक मंदिर बनवाया, अप्रिसिएशन करे तभी तो मंदिर बनवाया. लोग आके वहां पे बैठ के बातें करे, वहां पे रंग मंडप, भोग मंडप और ये डांसिंग के लिए ऐसे अलग अलग एरियाज उन्होंने कॉम्पीट करके, ये राजा ने ऐसा बनाया तो मैं दूसरा बना लूंगा, ऐसा करके. और आर्ट अप्रिसिएशन का हम लोग अगर कुछ एग्जाम्पल्स देंगे तो सोचिए, हम लोग गांधारा आर्ट में बुद्धा को देख रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा को देख रहे हैं, तो इट इज अप्रिसिएशन एंड अप्रोप्रिएशन ऑल्सो. हम लोगों ने अपनाया, और हम लोगों ने बुद्धा को गांधारा आर्ट में देख सकते हैं और इंडियन आर्ट में भी देख सकते हैं, बट बाद में. तो अप्रिसिएशन तब होगा जब वो लोग जाकर के उसको अप्रिशिएट करें. देन नेक्स्ट स्टेप विल बी द अप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम लोग वो आर्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं, हम लोग वो पर्टिकुलर थीम को यूज कर रहे हैं. तो एज आई सेड, ऑल दीज पीपल, फॉरेनर्स आते हैं, किसी ने सजेशन किया कि फॉरेनर्स के बारे में बात करो, तो फॉरेनर्स आते हैं इसीलिए कि ये लोग आर्ट को प्योरली अप्रिशिएट करने के लिए आते हैं, यहाँ का इमोशंस को फील करने आते हैं, इंडियन फिलोसफी को, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को फील करने आते हैं. नहीं तो कुंभ में इतने करोड़ों लोग क्यों आते हैं? So there is this tendency of Indian spirituality and philosophy को ऐसा एक attractiveness है कि जो सभी लोगों को pull करता है. See, it is not that complicated. Anybody can understand Indian art and philosophy. आपको इसीलिए एक डिग्री या एक PhD कुछ नहीं चाहिए फिलोसफी में एंड स्पिरिचुअलिटी में. Anybody can understand it. In this case, चाइल्ड का समझ में आया, इंजीनियर का समझ में आया, फिलोसफी का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का पता है, डिवोटी का पता है. तो बट आपको ये समझना चाहिए कि सभी लोग वो प्लेस, वो एरिया क्यों जा रहे हैं. तो दिस डिविनिटी इज अ कॉमन थिंग अमॉन्ग ऑल दिस ग्रुप्स ऑफ पीपल. वो लोग किस लिए जा रहे हैं मंदिर को? अंत में दे विल गो फॉर द डीटी, कौन है रिसाइडिंग डाइटी, वहां पे उनको देख करके एक बार प्रणाम दे करके हम लोग वापस आ जाए. इतना दूर जाके सिर्फ आर्किटेक्चर देख के तो नहीं आ जाएंगे ना. मैं भी तो जाऊंगी, आर्किटेक्चर देखूंगी, अंदर जाके प्रे करूंगी ना, करके आऊंगी, नहीं तो स्कल्पचर देखूंगी भगवान का मूर्ति कैसा बना. And now I show you some beautiful sculptures from different states. Okay, these two. This is from Telangana, Ramappa temple, which is one of the UNESCO World Heritage temple there, and this is also from the same temple. Appropriation के लिए मैंने इसीलिए दिया कि वहां पे ये जो मटेरियल मिल नहीं रहा था, तो आपको कर्नाटका के दूर से, कहीं दूर, फ्रॉम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वो ग्रेनाइट लाके सेम थीम को बनवा के सेम मंदिर में मदनिका को एक जगह पे रखा गया था. And this theme I am again going to show you in 4 more papers. You just understand the theme here. She is a huntress, accomplished huntress, because she went to the forest and she got her product of that particular day. And then वो रास्ते में चप्पल नहीं पहनी. एक्चुअली यूनेस्को रामप्पा टेम्पल ने पादुकास भी रहते हैं दूसरे मदनिका को, बट हियर वी डोंट हैव एनी दिस थिंग, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट था कि वो टॉर्न लग गया था, उसको निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे स्कल्प्टर क्या किया आप एक बार देखिए. जहां पे ये टॉर्न लग गया वहां पे स्वेलिंग भी दिख रहा है. आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है?
मैम आप थोड़ा ज़ूम कर सकती हैं उसको, लाइक Zoom थोड़ा करूँ? वैसे, या ज़ूम करने अगर के लिए अगर पॉसिबल हो तो। मैं ट्राई करती हूँ। या आई विल ट्राई टू। या दिस एरिया आई थिंक यू हैव टू सी दिस वन। और भी जूम करती हूँ। देखिए यहाँ पे जहाँ पे टॉन निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्वेलिंग जैसा है। जब भी आपको कुछ लग जाता है तो स्वेलिंग होना इज वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल। कैन यू सी दिस नाउ देवेश? Yes, ma'am. या वेरी गुड वेरी गुड। सो एक टॉर्न लगने से पैर को क्या हो रहा है वो भी हम लोगों को स्कल्पचर में स्कल्पटर ने सक्सेसफुली हमको बताया। और मैंने ये पोस्टर को देख के कैसा बोला कि सक्सेसफुल हंटर है कि देखिए उनका जो अटेंडेंट है, टॉर्न तो तभी लगेगा कि वो पहला अपना काम खत्म करके फिर इसके बारे में ध्यान दे रही है। यहाँ पे एक अटेंडेंट के पास एक एंटेलोप है और यहाँ पे भी यू कैन सी वन मोर अटेंडेंट, लाइक वन ऑफ आवर अटेंडेंट्स रिमूविंग द टॉर्न। सेम थीम। ये मैं बोल रही हूँ कि तेलंगाना से लिया है। जब अभी नोट कर लीजिए, मैं तेलंगाना की बात कर रही हूँ। तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसी टेम्पल में ये दोनों स्कल्पचर आपको मिलते हैं। एंड देन नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द अदर हंट्रेसेस, दिस इज द ब्यूटीफुल होयसला हंट्रेस, जहाँ पे इनका भी पैर में टॉर्न है। मैंने शायद इसको एडिट कर दिया था। वन मोर अटेंडेंट इज रिमूविंग द टॉर्न देयर एंड देन one attendant is carrying an antelope. That means she is returning back from her hunting. And this is from Karnataka. I said Hoysala temple. And then this is from Velur, Tamil Nadu. Okay, पूरा बात करने के बाद हम ये थीम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं है, बट यू कैन सी द डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स। डोमेस्टिकेशन नहीं है यहाँ पे, ये डॉग वेल ट्रेन्ड डॉग है। कर्नाटका से भी आपको ऐसा सोमनाथपुरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल में एक साइट है, एक स्कल्पचर है जहाँ पे भी डॉग होता है, क्योंकि हंट्रेसेस यूज्ड टू टेक देयर घर में जो डॉग्स ट्रेन किया हुआ डॉग्स होते थे वो डॉग्स को हंटिंग के लिए लेके जाते थे। एंड देन हियर अगेन दिस इज फ्रॉम वेलूर जलकंडेश्वरा टेम्पल। And then again one more attendant is taking removing the torn and she is standing, वो उनके ऊपर थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, she is standing on his support. And then torn removal. Yeah, these two are from Tamil Nadu, this is from Karnataka, and the previous one that is from Telangana, as I said. And again if I talk, this is from Chidambaram temple, Tamil Nadu. Same concept है, सेम टॉर्न निकालने वाला है। यहाँ पे एंटेलोप से ये डॉगी है, डॉगी को लेके गए हैं, एंटेलोप को हंट करके लेके आ रहे हैं। एंड दिस इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दिस इज फ्रॉम द गोविंदराजा स्वामी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। मैंने जब ये टेम्पल्स विजिट किया है, आप बोलेंगे कि साउथ इंडिया में अगर मैं कर्नाटका से लेकर के कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पूरा एरियाज को लेकर के जब मैं बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट होयसला पीरियड एंड चिदम्बरम का मिडिवल पीरियड का ही बात कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक 1000 ईयर में हुआ, 1600 में हुआ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। तो मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि पूरा जो कल्चरल हेरिटेज वाला थीम जो है, वो थीम वाज टू कॉमन, सिग्निफिकेंट। और ये थीम पूरा साउथ इंडिया में आप देख रहे हैं, जहाँ के कर्नाटका से पूरा मैं इंटीरियर तमिलनाडु जाऊं तो नियरली 1200 किलोमीटर्स तो होगा ना, ऐसा नहीं। उन दिनों में 1800 सी में कॉमन एरा में लोग जाकर के विजिट करके ये थीम को लेकर के अपनापन दिए हैं उसको। यहाँ पे जैसे हमने देखा, शी इज टेकिंग हर ओन टॉर्न, जो टॉर्न लग गया वो खुद निकाल रही है। बट अदर थिंग्स वी हैव सीन द अटेंडेंट रिमूविंग द टॉर्न. So these things, as I said, this is from Telangana and this is from Karnataka and Tamil Nadu. Again, this is from Tamil Nadu and Andhra. So मैंने नॉर्थ इंडिया के विजिट नहीं किया। अगर वहां से भी कुछ ऐसे स्कल्पचर्स है तो आप मेरे को भेजिएगा, मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगी मेरे अगले प्रेजेंटेशंस में कहीं पे। बट द थीम इज दैट यू कैन गेट सो मेनी आइटम्स फ्रॉम दीज पिक्चर्स। सी नेचुरल लीव्स को बांधा हुआ है यहाँ पे। नेचुरल लीव्स का जो एक ड्रेस यूज करते थे उन दिनों में। About these things, we have one beautiful article about costumes in southern India, and यहाँ पे भी same thing है। यहाँ पे also and here they have cloth, woven cloth. यहाँ पे pearls का made because Hoysala and Chalukya architecture में आपको क्लॉथ का यूसेज ज्यादा नहीं दिखता, क्योंकि पूरा ऑर्नामेंटेशन रहता है। तो ये ऑर्नामेंट है कि एक्चुअल कॉस्ट्यूम में हमको पता नहीं चलता है। एंड इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इफ आई कैन जूम इन दिस पिक्चर यू कैन सी द, आप एक पिक्चर का पूरा ये थीम देख सकते हो। Can you see this here? Can you see the marks on the leaves? So पूरा का पूरा एक leaves दिख रहा है हमको। तो उन लोगों का कॉस्ट्यूम वो टाइम पे इससे बना हुआ था। तो these are the basic things we can see from the sculptures of South India entirely, I can say, because I have not visited many temples in North, so I don't think if somebody have those things, please send. And यहाँ पे
वो इनका जो पैर में लाइक डिजाइन देने की कोशिश की है. यू कैन सी द ऑर्नामेंट्स ऑल्सो एंड यू कैन सी हर हैंड ऑर्नामेंट्स. हाथ में जो ऑर्नामेंट्स है, सभी लोग हंड्रेड्स बन करके जितना अच्छा ऑर्नामेंटेशन दिया हुआ है, इसके बारे में मैं लास्ट में भी बात करती हूँ. एंड देन यू हैव अगेन नेचुरल फ्लावर्स एंड दीज थिंग्स एंड हियर ऑल्सो. या आई कवर्ड ऑल दीज थिंग्स नाउ आई थिंक. देन आर्ट, ये हो गया आर्ट का. what was this about? Art appropriation. Because entire South India में किसी एक पर्टिकुलर मंदिर को या किसी एक पर्टिकुलर थीम को एक स्कल्प्टर ने जाकर के सेंचुरीज, एक स्कल्प्टर जाके एक बार देख के आया, उन्होंने कुछ स्कल्प्ट कर दिया है, चिजल कर दिया है. बाद में कोई और आया, कोई और अपनापन भी दिया कि अरे कोई अटेंडेंट किस लिए, मैं हंट्रेस अकेली जा रही है, हंट्रेस को टर्न लग गया तो हंट्रेस अकेली रिमूव कर रही है, अटेंडेंट की जरूरत नहीं है. तो ऐसा करके अपनापन दिया है. तो दिस इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन. तो पूरा साउथ इंडिया में कैसा अप्रोप्रिएशन हुआ मैं बता दिया. अभी मैं आपको एक थीम को लेकर के इंटरप्रिटेशन बताती हूँ. इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं महिषमर्दिनी पैनल कैसा साउथ इंडियन टेम्पल्स में डिपिक्ट किया हुआ है मैं बता रही हूँ. महिषमर्दिनी में आपको पूरा गॉडेस दुर्गा एज महिषमर्दिनी दिख रहा है. यहाँ पे इनके 6 हाथ दिए हुए हैं ऑन ऑल दिस चक्र, शंख चक्र गदा हस्ते. ओके, सो पूरे खड्ग भी है यहाँ पे. यू कैन सी द स्वॉर्ड ऑल्सो. तो ये महिषासुर को जो है यहाँ पे दुर्गा, शी इज किलिंग हिम यूजिंग ए स्वॉर्ड हियर. तो इट इज अ बिट फेरोशियस बिकॉज एंगर दिखना चाहिए, उसीलिए थोड़ा सा 6 हाथ एंड ऑल दिस थिंग्स दिया है. दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्कल्प्टर अगेन. एंड देन दुर्गा को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, शी इज सिम्हारूढ़िनी, शी सिट्स ऑन अ लायन. सो लायन दिखना चाहिए. तो यहाँ पे यहाँ पे महिषा दिख रहा है. एट द सेम टाइम हमको फेरोशियस, जो जितना भी क्रुएल्टी चाहिए किसी को मारने के लिए ना, हम हंसते हंसते किसी को मार नहीं सकते. तो वो फेरोशियसनेस जो है स्कल्पचर में दिखना चाहिए. तो यू कैन सी लाइक मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ, मगर आपको भी फील करना पड़ेगा अभी कि मैम गुस्से में है, दुर्गा मैम गुस्से में है. ओके, या सो आई एम ट्राइंग टू हिप्नोटाइज यू ऑल नाउ. सो शी इज एंग्री. ओके, सेम थिंग. अभी ये 6 हैंड्स का जो मैंने बताया, 6th हैंड में यहाँ पे स्वॉर्ड है. एंड देन हियर आप एक स्कल्प्टर का इंटरप्रिटेशन देखिए. आप लोग एक डेमोन से डील कर रहे हो. डेमोन ऐसा नहीं है कि वो दुर्गा, माँ दुर्गा के पैर में ऐसा जाके सरेंडर हो गया और माँ सिंपली उनको यहाँ पे स्वॉर्ड यूज करके किल मार रहे हैं. नो, यहाँ पे माँ अपनी एक हाथ से ये महिषासुर का पूंछ पकड़ के पैर उनका ये जो हेड है ना सिर पे रखा हुआ है. तो दिस इज वन इंटरप्रिटेशन. सो स्कल्पचर गिव्स यू लॉट्स ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन अंडरस्टैंड मेनी एरियाज एंड अंडरस्टैंड अवर स्कल्प्टर्स दिमाग दैट टाइम क्या सोचते थे अपना स्कल्पचर्स क्या कैसा बना दिया. और ये स्कल्पचर को मैं अगर बताऊं बहुत ही ब्यूटीफुल वे में मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ इसको. देखिए, दिस इज द ब्यूटीफुल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म एवर. बहुत ही सिंपल है. शंख चक्र गदा हस्ते. यहाँ पे सिंपली मैम इज सिटिंग एंड आई कॉल हर मैम अगेन एंड अगेन. दुर्गा इज सिटिंग हियर विथ शंख इन वन हैंड एंड चक्र इन गदा इन शंख चक्र. सो बोथ दीज थिंग्स एंड स्वॉर्ड से लेकर के बस एक पैर महिषासुर के सिर पे है और स्वॉर्ड से किलिंग कर रहे हैं. वो भी जस्ट लुक एट हर फेस. मैं बताऊं स्कल्प्टर क्या सोच रहा था. माई इंटरप्रिटेशन, बिकॉज शी इज द यूनिवर्सल गॉडेस. For her, a demon like Mahishasura is nothing. उनके लिए दुर्गा को अपना इतना एनर्जी वेस्ट करने का जरूरत नहीं है. She can kill him just like that. So अगर मैं वो स्कल्प्टर होता तो मैंने ऐसे ही किया होगा. तो मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ. तो आपको ऐसे पिक्चर्स, ऐसे स्कल्पचर्स, मैं अभी एक एग्जाम्पल दिया है क्योंकि हमारे पास जितना टाइम है उसके हिसाब से. अगर नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंटरप्रिटेशंस है जहां पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म से लेकर के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स दिखते हैं. यहाँ पे देखिए, दिस इज फ्रॉम वेलूर तमिलनाडु टेम्पल एंड दिस इज फ्रॉम महाबलीपुरम अगेन. अभी सोचिए महिषासुर को महिषमर्दिनी क्यों हुए, उनको मारने के लिए किया है क्योंकि वो बहुत आकृति करता था, वो बहुत एट्रोसिटीज करता था, सबको रुलाता था, सताता था, उसीलिए मारने के लिए आए. तो वो इतना पावरफुल है. तो यहाँ पे स्कल्प्टर को ये है कि सिंपली कोई रोड पे जाने वाले बंदे को मारने के लिए दुर्गा क्यों आए, जबकि वो बहुत ही क्या होना चाहिए नो, एनर्जेटिक एंड ही गॉट लॉट्स ऑफ आर्मी. वो सब होगा, वो भी पावरफुल होगा. तभी तो माँ को अपने पूरे 10 हाथ और 10 वेपन्स यूज करना पड़ेगा. और शी इज यूजिंग वुमेन. यहाँ पे
वुमेन वॉरियर्स भी है। देखिए यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ स्वॉर्ड लेकर के फाइट कर रही है, जो महिषासुर को भी अपना एक आर्मी है, वो आर्मी को महिषमर्दिनी का आर्मी जो है वो भगा रहा है। तो इट इज लाइक यू आर सीइंग इन अ लार्ज कैनवास। आप ओनली महिषासुर को और दुर्गा को नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरा उनका परिवार, आप देख रहे हैं उनका पूरा उनका साम्राज्य। कुछ दिन वो एट्रोसिटीज किया, जब लोग सह नहीं पा रहे थे वो जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों ने कोशिश किया मगर हम मार नहीं पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, तो आप उनका कुछ कीजिए। तब जाकर के वो अपने पूरा वेपन्स और अपने आर्मी लायन लिया है, वुमेन वॉरियर्स लिया है, ये पूरा भूत गणास को ले जाकर के वॉर किया है। तो कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन से देखिए। आप लोग अगर आर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो पहले यू शुड अंडरस्टैंड आर्ट इन योर पर्सनल लेवल। अगर आर्ट को आप अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं तो उसको कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे अप्रोप्रिएट किए हैं। आपको पता है यहाँ पे कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ टेम्पल है और अजंता एल्लोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल है, अप्रोप्रिएशन है, अप्रिसिएशन एंड अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे अच्छा लगा वो राजा को, वो यहाँ के आर्किटेक्ट्स को ले जा करके वहां पे एक मंदिर बनवाया। फिर आप देख सकते हैं चालुक्य, होयसला एंड काकतीय टेम्पल्स में ऐसा आर्ट अप्रिसिएशन बहुत दिखता है। तो कभी कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस बोलेंगे तो इंडियन आर्ट जो है, इस्लामिक पेंटिंग्स जो है, वो भी एक्चुअली पीपल से दैट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिंग लाइक दैट, बट अप्रिसिएशन एंड अप्रोप्रिएशन की वजह से बहुत ही अपना मुस्लिम इस्लाम आर्ट जो है वो डेवलप हुआ है। सो वी आर नॉट ascribing particularly, but it is that it may be one reason because of the Mughal art and paintings, particularly when I talk about. So यहाँ पे आपको जितना ब्यूटी और सिंपलर फॉर्म्स में दिख रहा है, द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स में दिख रहा है, दिस इज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट। अभी आप सोचिए कि अगर आप एक स्कल्प्टर होंगे, अगर आप कुछ स्कल्प्ट करना लाइक चिजल करना चाहते हैं, तो आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे चिजल करेंगे उसको, क्या फॉर्म्स दे सकते हैं आप आर्ट को। यहाँ पे भी मैं कुछ एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ कि अगेन वी गॉट द होयसला स्कल्प्टर हंट्रेस हियर। ये जो स्कल्पचर, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ आज के जमाने के बच्चों के लिए, और आज के जमाने के कोई भी हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उन लोग के बारे में। दिस इज अगेन फ्रॉम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल, रामप्पा टेम्पल। ये टेम्पल बनाने के लिए रामप्पा को 40 साल लग गए हैं। उन्होंने अपना लाइफ के 40 साल इस मंदिर के बनाने में स्पेंड किया, तभी तो ये मंदिर रामप्पा टेम्पल के नाम पे अभी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। कोई भी यूनेस्को में जाकर आप पढ़ोगे तो इसको रामप्पा टेम्पल बोलेंगे। शिवा टेम्पल, शिवा का नाम अलग है इसमें, बट रामप्पा टेम्पल कहेंगे इसको। ऐसा 2 रामप्पा टेम्पल्स है। दिस इज पर्टिकुलरली इन मुलुगु इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लगे। अभी साउथ में जाइए तो वारंगल में है ये। एंड देन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, दिस लेडी शी इज परफॉर्मिंग इन द टेम्पल इन फ्रंट ऑफ हर पैटर्न, राजा के सामने और जो ट्रेडर्स और जो भी डोनर्स है उन लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रही है। तो वाइल हर परफॉर्मेंस, तो यहाँ के कंठहार जो है टूट जाता है। टूट जाने से क्या हो जाता है, बच्चे जब भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कुछ चीज टूट जाता है तो वो लोग ऐसे ऐसे पागल हो जाते हैं और भाग जाते हैं, रोने लगते हैं। सॉरी टू से दिस, एक्सीडेंटली एक वीडियो देखा था परसों की, स्टेज पे डांस करते करते एक लड़की की डेथ हो गई थी। लाइक डेथ हुई नहीं हुई, आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन दोस थिंग्स, बट गिरना तो देखा था मैंने वहां तक एक पिक्चर में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा रहता था। फिर शी इज बैलेंसिंग दिस नेकलेस विथ हर 2 फिंगर्स। एक्चुअली ये वो स्टेप्स में नहीं है, कोरियोग्राफी जहां तक किया है उन्होंने वहां पे ये स्टेप्स नहीं है, बट उनको वो टाइम पे अटेंटिव रहना पड़ेगा। अटेंटिव रह करके उसके हिसाब से अपना मूवमेंट्स को चेंज करके वो लड़की जो द आर्टिस्ट, द परफॉर्मर देयर, शी इमीडिएटली चेंजेस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन, योर मेन फोकस, वो जो फोकस है वो फोकस बहुत ही जरूरी है। तो क्यों मैं इसमें से फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी निकालना चाहती हूँ, why do I need to bring out or abstract philosophy and spirituality? Indian philosophy says that भयम की जरूरत नहीं है, आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं है। जो भी सिस्टम हो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टेंस हो, पैनिक हो जाते हैं। इट इज कॉमन टेंडेंसी दैट पैनिक हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, काफी फिलोसोफर्स भी, स्पिरिचुअल लीडर्स भी, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हो जाता है। बट द वे वी डील विद द फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी इन इंडिया इज अ यूनिवर्सल थिंग। दैट यूनिवर्सल थिंग्स जब हम डील कर रहे हैं तो पर्सनल लेवल पे हमको डरने का कोई भी टेंडेंसी नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सल लेवल पे डील करते हैं सब कुछ। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट दिस हंट्रेस, आप सभी को मैं एक छोटा सा याद दिलाना चाहती हूँ। जैसे महाभारत में जब अर्जुन एंड द्रोणाचार्य के बिटवीन में ये जब होता है कि हंटिंग करने के लिए सिखाते हैं, जो शूटिंग सिखाते हैं, तो पूछेंगे कि कुछ दिख रहा है,
तो सभी लोग बोलते हैं कि मैं पेड़ देख रहा हूँ, मैं बर्ड और पेड़ सभी देख रहा हूँ, वृक्ष सभी देख रहा हूँ, दैट इज एंड ऑल, बट ओनली अर्जुना सेज दैट मुझे सिर्फ आई कैन सी ओनली द बर्ड्स आई. सो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन लेवल. सो कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए क्या बताना है हमको? हंट्रेस है, हंट्रेस इतना ऑर्नामेंटेशन करके एक जंगल में जा रही है. अभी तो सोचिए कि रोड पे व्हीकल्स है, वो है, ये है, बट दोज डेज फॉरेस्ट में गई है. जस्ट इमेजिन कीजिए कि इनका जो एंकलेट्स है, इनका जो पर्ल का बना हुआ गर्डल्स एंड नेकलेसेस एंड झुमकी, सब कुछ आप देख पा रहे हैं इसमें. थोड़ा सा भी साउंड अगर हो गया तो क्या उसका प्रे ऊपर शूट कर रहे, तो इसका मतलब है कि बर्ड पे कर रहे हैं, राइट? इट्स नॉट द एनिमल्स, टाइगर और समथिंग देयर. मे बी पैंथर पेड़ पे कहीं भी कुछ हो सकता है, बट व्हाट आई कैन अज्यूम इज अ बर्ड इज देयर. सो शी इज एमिंग ऑन दैट अमिस्ट ऑल दीज डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि यहाँ के जो साउंड्स है, यहाँ के कुछ डिस्टर्बेंसेस से वो बर्ड भाग भी सकता है, वो प्रे तो भाग जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, बट स्टिल शी इज concentrating on her prey. And spiritually, when I want to talk about this embodying the divine in one particular sculptural form, ये हंट्रेस अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजें निभा रही है. कैसा? कैसे मैं बताऊंगी कि धर्म is her profession. She is a huntress. Every day she has to go to the jungle and bring something home. प्रोडक्टिविटी होना चाहिए उनको, दैट इज हर धर्म. एवरीडे व्हाट वी डू इज आवर धर्म. प्रोफेशनल हो या इफ योर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग कौन से आश्रम में है अभी बोलिए? The 4 ashrams are there, right? I already spoke about गृहस्थ आश्रम. वेरी गुड. ब्रह्मचर्य में हमको अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहिए. तो ये लेडी अपना धर्म निभाने के लिए वो दिस इज हर प्रोफेशन. बट नाउ ब्रह्मचर्य आश्रम में हमको क्या करना है? हमको पढ़ना है. हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी अपने धर्म निभा रहे हैं, ओके, इन अ वेरी गुड सेंस. तो इसीलिए ये हंड्रेस है. प्रोफेशनली शी इज डूइंग हर धर्म, लाइक वो अपना धर्म परफॉर्म कर रही है. एंड देन धर्म इज अगेन यूनिवर्सल, कर्मा इज पर्सनल. कर्मा फॉर हर इज everyday's activity. Karma is activity, right? It's a work what she is doing. So karma भी कर रही है personal level पे, and she is contributing to the dharma of the universe also, to her society, to the state, to the country, to the international level, universe. Okay, so धर्मा को ले लिया. कामा क्या हो गया वहां पे? वो लड़की किस लिए कर रही है? कामा अर्थ. अर्थ में यहाँ पे हम लोग वेल्थ नहीं देख रहे हैं, अर्थ नहीं देख रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर हंटिंग? लेडी है, हंट्रेस है, घर में बैठ के अपना जो हस्बैंड ला रहे हैं बैठ के वो खा सकती है. बट वाई उतना रिस्क करके जंगल में जा करके? अभी हमने पिछले हंट्रेस का देखे हैं, टॉन्स लगते हैं और वाइल्ड एनिमल्स का थ्रेट होता है. ये सब होने से वो क्यों ये कर रही है? सब होने से बावजूद शी इज रेडी टू फेस एनी रिस्क. सो किस लिए जा रही है? फॉर एक्नॉलेजमेंट, टू fulfill her dharma, to fulfill her karma and moksha. At the same time, I tell you in another video also I spoke about this. Like maybe आप लोग सुने होंगे तो बोर लग जाएंगे, बट the concept for the new command I'm telling. यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल्स है वो लोग जब भी किंग्स के किचन में अपने अपने प्रोफेशन से कुछ चीज किंग्स को देना पड़ता है. तो पॉटर होगा तो अपना हिसाब का कुछ पॉटरी रॉयल पैलेस को भेजना होगा. हंट्रेस और हंटर कैसे रिलेटेड है? वो लोग जितना रॉयल किचन में हर दिन बहुत सारे अशोका के इंस्क्रिप्शन में हमको पता है ना, पढ़े होंगे, बहुत सारे रॉयल किचन में एनिमल्स का ये होता था, बनाते थे. तो जितना स्प्लेंडर है, जितना वेस्ट एम्पायर है, उतना अच्छा डेलिकेसी टेबल पे होना चाहिए, राइट? सो हंड्रेड्स एटलीस्ट टेंस ऑफ अच्छा डेलिकेसीज तो होना चाहिए. उसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रोडक्ट चाहिए. अभी तो दुकान है, हम जाकर के खरीद के ला रहे हैं, बट वो टाइम पे हंट्रेसेस एंड हंटर्स यूज्ड टू गिव शेयर ऑफ द पर्टिकुलर थिंग एंड पर्पसफुली दे यूज्ड टू किंग्स किचन के लिए किसी को एम्प्लॉय करते थे. सो व्हाट इज द मोक्षा? मैं बोल रही हूँ इंडियन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी में मोक्षा को अंडरस्टैंड करना जितना आसान है वो कोई दूसरा कम्युनिटी या सोसाइटी में नहीं मिलता है. क्योंकि यहाँ पे हम लोग शी इज डूइंग हर धर्मा और द कामा थिंग्स in a routine way. Scientists say that perfection comes with repetition. आप बार-बार लिखना शुरू करोगे तो हैंडराइटिंग अच्छा होगा. बार-बार एक ही चीज को पढ़ोगे, एक श्लोका को बाय हार्ट करोगे तो श्लोका आ जाएगा. तो परफेक्शन कब आएगा? आपको एक चीज को बार-बार करने से आएगा, राइट? सो ये जो हंट्रेस है हर दिन विदाउट फेल अपना धर्म करते आती है और अपना कर्म निभाती है, तभी वो जाकर के अंत में मोक्ष पाती है. बिकॉज शी हैज टू आंसर द डिवाइन पर्सनालिटी.
कहीं यहाँ पे शी हैज टू आंसर का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई एक टेबल और चेयर लगा के बैठे हैं और उनको जाके मैं बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलना है कि मैंने आज पूरा दिन लाइक नो माई लाइफ टाइम इतने सारे एनिमल्स को मारा, इतने बर्ड्स को मारा, ऐसा अकाउंट नहीं देना है। बट फॉर हरसेल्फ शी शुड फील कंटेंटेड, उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ मैंने आज मेरा काम किया है, तब मैं सुपीरियर स्पिरिट को जब मैं फेस करूंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो दिस इज व्हाट वेयर यू कैन लर्न फ्रॉम दीज कल्चर्स। ये इंडियन आर्ट के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, आइकोनोग्राफी के बारे में बात कर रही हूँ, आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बना के उसको कन्फाइन करके हम लोग जब पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, अभी पता नहीं कोई वेदी करके कुछ कम्युनिटी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं बोल रही हूँ हम लोग कन्फाइन कर रहे हैं अपना जो यूनिवर्सल नॉलेज था, वो पूरा यूनिवर्सल नॉलेज को हम लोग डिवाइड कर दिए, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तबकि हम लोग हिस्टोरियंस है, ऐसा मैंने बोला कि हिस्टोरियंस को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। न्यूमिस्मेटिक्स हो गया, एपिग्राफी हो गया, आर्ट हो गया, पेंटिंग्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, सब चीजों के बारे में जानकारी होना एक हिस्टोरियन के लिए मैंडेटरी है। एंड मैं इतना तो जानती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी आपका होमवर्क कर रहे हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स अटेंड कर रहे हो आपके अध्यक्ष के साथ, और बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, हेरिटेज वॉक्स एंड म्यूजियम वॉक्स एंड ऑल। बट वेन एवर यू गेट टाइम, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रोपोगेट अपना हेरिटेज। हम लोग अपने हेरिटेज को प्रोपोगेट नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपना है। अपना हेरिटेज को हम लोग नहीं बताएंगे तो कोई वेस्टर्नर आके बोलेगा कि ये इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है और ये स्कल्पचर का मीनिंग ये है, अंडरलाइन फैक्ट जो है, अंडरलाइन थीम्स जो है, कोई आके हमको बोले बहुत बुरा लगेगा। हम लोगों को बोलना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है। तो आप लोगों ने मुझे इंडियन आर्ट के बारे में बात करने के लिए बोला, उसीलिए ऐसा नहीं है कि मैंने जबरदस्ती फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी सब चीजों को एक जगह पे डाला, ये ऑलरेडी उसमें है। उसमें से मैं लेकर के आपको कुछ चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि आप आगे कुछ कल्चर देख पाओगे, तो आप उसका जो अबंडेंस है, जो उसका जो जनरली मैं बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स या नॉन हिस्ट्री रिलेटेड पीपल जो नहीं है, वो लोग जब जाएंगे तो बस इतना देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बना दिया, क्या हो गया इसका, ये क्या बनाना चाहता था। ऐसा नहीं होता। देयर विल बी वन पर्टिकुलर थीम, देयर विल बी वन पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी, ये सब चीजों में ना हमको मिल जाता है। तो आपको इंटरप्रिटेशन, ये जो 5 चीजें हैं, 5 तत्व जो मैं बता रही हूँ बार बार, ये बहुत जरूरी है। इंडिया में अभी एजुकेशन सिस्टम में हमको आइदर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, 2 ही चीजें दिखते हैं। आप जाएंगे तो कोई गाइड देखेगा, बोलेगा कि सो कॉल्ड सम किंग केम एंड ही डिस्ट्रक्टेड ऑल दिस थिंग्स, तो हम बोलेंगे अरे कैसा डिस्ट्रक्ट कर दिया। बट इसके चक्कर में इनके पीछे हम लोग वहां का जो ओरिजिनल अभी भी इंटैक्ट कला जो है, इंटैक्ट फिलोसफी जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, उसको हम लोग खो रहे हैं। अप्रिसिएशन, अप्रोप्रिएशन एंड इंटरप्रिटेशन होने के बाद में हम लोग डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, तब हमारा एवोल्यूशन पीरियड जो है बहुत ही अच्छा होगा। डिस्ट्रक्शन के बारे में ना करें तो भी अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव चीजें हम बात करेंगे ही नहीं, किस लिए करें। डिस्ट्रक्ट हो गया, अभी हम उसको कुछ नहीं कर सकते, रेनोवेट तो कर सकते मगर उतना अच्छा नहीं कर सकते जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने किया है। कभी अगर आप कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम जाते हैं तो देखना कि रेनोवेशन जब करते थे, पहले जब हमको टेक्निक्स नहीं पता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ स्कल्पचर्स को यहाँ वहाँ टेपरिंग कर दिया था, तो वो एक तरफ डिस्ट्रक्शन हमने ज्यादा कर दिया होगा। ऐसा डिस्ट्रक्शन के बारे में बात ना करें तो भी चलेगा, मगर आपको क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच में नहीं रहना है। आपको क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच में अप्रिसिएशन, अप्रोप्रिएशन एंड इंटरप्रिटेशन को भी अपनाना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो दिस वाज एक 1 आवर में आई डोंट थिंक आई कैन गिव यू मेनी मोर डिटेल्स, एंड हियर मैं पेंटिंग को भी लाना चाह रही थी, कलर्स ऑफ डिवोशन। दिस इज वन पेंटिंग। ये लड़की जो है यहाँ पे उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, शी इज शिवानी सिंह, शी इज फ्रॉम वाराणसी अगेन। एंड देन जो भी पिक्चर्स यहाँ पे है, तो वो जो भी पेंटिंग में, जैसे मैंने जैनिज्म का एक पेंटिंग दिखाया, एक पेंटिंग से आप लोग को कितना डिविनिटी अपने आप को बदलने का, जैसे मैं बोली कि करिकुलम में हम उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, टीचर बोल सकते हैं बच्चे को कि अगर तुम ऐसा करोगे तो यू विल बी गिवन ब्लैक ग्रेड, तो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा तो उसका कलर बढ़ते रहेगा। तो हम लोग बच्चे के कैरेक्टर में हम लोग परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे तो कितना इजी है और सिंपल है। एक रिलीजन को समझ रहे हैं हम लोग, वो एक पेंटिंग से रिलीजन को समझ रहे हैं, और एक स्कल्पचर को हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष फिलोसफी को समझ रहे हैं, और एक ये जो डांसर का स्कल्पचर से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन और ब्रह्मचर्य में जो स्टूडेंट्स को जो चाहिए वो सब समझ रहे हैं। तो ये सब छोड़ करके हम लोग सिर्फ
जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमको जो जो दिया है, बुक्स दिया है या कुछ भी कॉन्सेप्ट्स दिया है, हम लोग उसमें, मैं ये नहीं बोल रही कि मत पढ़िए, अगर ऐसा बोलोगे तो अक्षत सर आपको बुक्स नहीं भेजेंगे कल के लिए, तो ये नहीं बोलूंगी आपको नहीं पढ़ना है, बट यू टेक whichever is related to Indian, concepts, whichever is related to our civilization, whichever related to Indus Valley, Buddhism, Jainism. हमने भी डिस्ट्रक्शन किया, ह्यूमन वाइंडलिज्म आज भी होता है, कभी पॉलिटिकल के बिटवीन कुछ झगड़ा हो जाता है, वो लोग मॉन्यूमेंट पे चले जाते हैं। अगर वही काम आप एनिमल्स को करो, एनिमल प्रोटेक्शन वाले, एनिमल हस्बेंड्री वाले आके आपके ऊपर केस डालेंगे, और नहीं तो लेडीज को छेड़ो तो कोई आकर के बोलेंगे कि वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आकर के झगड़ा करेंगे। बट ओनली चीज ये है कि आर्किटेक्चर और आर्कियोलॉजी को आप कुछ करो तो कोई भी कुछ नहीं करेगा। तो मैं ऑलरेडी कहीं प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इसके बारे में बात किया था कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं तो आप लोग ये बोल सकते कि कोई भी मूवी देखने के लिए हम लोग जाते हैं तो पहले 2 सेकंड्स के लिए आपको लिखा रहता है कि इस मूवी का प्रिपरेशन में किसी एनिमल का डेथ नहीं हुआ, हमने किसी एनिमल को मारा नहीं है, और इमीडिएटली नेक्स्ट इज कोई भी लेडी को हमने हार्म नहीं किया, और जबरदस्ती नहीं इन एक्टिंग, सो हमने हार्म नहीं पहुंचाया। बट एक फाइटिंग सीन हो रहा है, आप लोग डांस सीन ले रहे हैं या फाइटिंग सीन ले रहे हैं या कुछ अच्छा ट्रेडिशनल रिलीजियस टेम्पल दिखा रहे हैं, तो वो शूटिंग करने के बावजूद टाइम पे वो टेम्पल को कुछ चोट पहुंचा सकते हैं या कुछ डिस्ट्रक्ट और डैमेज हो सकता है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है मूवी के बैनर पे, सर्टिफिकेशन में, सेंसर डिपार्टमेंट में, कि ये मूवी मैंने बनाया, इसके दौरान मैंने किसी भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट को टच नहीं किया। और भले वो एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया हुआ हो, ओके, आर्ट डायरेक्टर होता है जो बनाता है, बट हम लोग क्या सोचेंगे, इतना रियलिस्टिक बनाता है कि हम सोचेंगे कि अरे यार फाइटिंग सीन करना है तो हमको वहां पे जाके करना है, ताजमहल जाके झगड़ा करना है, अगर अच्छा रोमांटिक गाना गाना है तो यार ताजमहल के बैकग्राउंड पे गाना गाना है। तो ये सच नहीं होता है कभी कभी। तो इसके चक्कर में हम लोग अपने आर्किटेक्चर को वैंडलाइज कर रहे हैं। तो इसको लेकर के मैं अक्षित से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और आप पूरे जो वॉलंटियर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जब भी कहीं पे अपना आवाज उठा के बात करना चाहते हैं तो मेक दिस एज अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग आउट ऑल दिस थिंग्स, कि आप लोग क्यों आर्किटेक्चर को सर्टिफिकेट में नहीं डाल रहे कि इस मूवी के दौरान हमने किसी भी आर्किटेक्चर को खराब नहीं किया, इंटैक्ट है। इतना तो बोल सकते हैं, इतना तो हम डिमांड कर सकते हैं, हम हिस्टोरियंस हैं, हम लोग डिमांड करना चाहिए, तो हम लोग डिमांड करेंगे। एनिमल्स के लिए बात करें, क्योंकि एनिमल्स लवर्स होते हैं कि अरे उनको तो बात करना नहीं आता, बेचारे एनिमल्स है, बेचारे डॉगी है, बेचारे बिल्ली है, उनके बारे में आप अपना वॉइस रेज कर रहे हो, बट आर्किटेक्चर के बारे में वॉइस रेज नहीं कर रहे हो, ये तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि आर्किटेक्चर को भी बोलना नहीं आता ना, हम लोगों को आर्किटेक्चर का साइड लेना पड़ेगा। तो आई थिंक within the given time I have done justice to the given topics here, but I just want, after this 1 hour class, after this 1 hour talk, no, it's not a class, it's just an interaction between me and you most of the time, not most of the time, 1 hour से ज्यादा मैंने ही बात किया। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब भी एक स्कल्पचर को देखते हैं, जब भी एक टेम्पल को देखते हैं, आप लोग इसके बारे में स्पिरिचुअली और फिलोसॉफिकली फोर्सफुली इंटरप्रेट मत करिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट हियर। ये लास्ट स्कल्पचर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। विद दिस अक्षित आई कंक्लूड, या जस्ट लाइक प्लेटफॉर्म विल बी ओपन फॉर एनी डाउट्स हियर। वैसे डाउट्स तो आएंगे नहीं, इट्स एन ओवरव्यू। सो यहाँ पे ये दोनों क्वींस है, रानियां है, उनके पास दुनिया भर के संपदा है, वेल्थ है, फिर भी when it comes to spirituality and philosophy in Indian art forms, it shows that there is something beyond the Rani, beyond the Raja, beyond that, beyond the Guru, Rajguru. So वो लोग भी प्रणाम करते हुए इतना humbly, इतना विनम्रता से वहां पे खड़े होते हैं कि हम लोग आजकल 2-3 डिग्री आ जाता है तो हम लोगों को लगता है मेरे को कौन क्या बोलेगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट रानियां होकर के भी ये लोग इतना विनम्रता से भगवान को प्रे कर रहे हैं। It's not that I'm not asking you to go to the temple right now, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी, कि एक हंट्रेस को आपने देखा, उसके पास कुछ भी नहीं है, मगर इतना ऑर्नामेंटेशन और इतना कंटेंटमेंट, इतना सेटिस्फेक्शन देखिए, कितना अच्छा रेडी होकर के हंटिंग करने जा रही है। और आप लोग यहाँ पे एक क्वींस को देख रहे हैं, तो नॉर्मल ये जो गोल्ड का ही बना हुआ है, क्वीन है तभी तो गोल्ड का ही बना हुआ होगा, बट द सिंप्लिसिटी, मंदिर को जाकर के वो जो ऑफरिंग्स कर रहे हैं उसके बारे में देखिए। मैं रानी हूँ, मैं क्यों मंदिर जाऊँ, मेरे को सब कुछ टेबल पे आ जाता है, मेरे को जाने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। Indian philosophy says that you have to, answer yourself, at least for yourself now, but afterwards the spiritual leader. It's not that, again I'm telling, that's not that somebody is sitting somewhere and making accounts of those things, चित्रगुप्त जैसे बैठ के लिख रहा है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी as a historian, but
what above us is to live happily, to live peacefully. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु. हम लोग ये ऐसा रहेंगे, किसी से तेन त्यक्तेन भुंजीता मा वृथा कस्यचित् धनम, किसी से कुछ नहीं लेंगे या किसी का हार्म नहीं पहुंचाएंगे और धर्मार्थ कामों मोक्ष, अपना काम हम करते रहेंगे, अपना गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ब्रह्मचर्य जो भी है हम लोग अच्छा कर लेंगे, तो उससे अच्छा क्या होता है. बहुत सारे एंसेस्टर्स ने ऐसा जी करके अच्छा अभी रेस्ट इन पीस हो गए हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इंडियन आर्ट इन दिस परसेप्शन. लाइक अभी एक आपका अंडरस्टैंडिंग मेरे से ज्यादा भी हो सकता है जितना मैं आपको अभी दिया है, मगर आई वांट यू टू understand in this particular way, where art, architecture, iconography, epigraphy, manuscriptology, paleography, all these things of history, Indian art comes together. Interconnectedness को आप लोग समझे. This is my humble request to all the students who participated today, and I'm very happy for this opportunity. Actually, Akshit, thanks to you, and I'm very happy. थोड़ा सा दिया हुआ टाइम से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि कन्फाइन करके बोला जल्दी जल्दी फास्ट, फिर भी 1 आवर से ज्यादा हो गया है. तो नाउ आई कैन कुछ क्वेश्चंस है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझको पूछ सकते हैं. ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इसमें नहीं है. दीज आर ऑल द सिंपल थिंग्स. आप हर दिन देखते होंगे, मंदिर को हर दिन देखते होंगे, स्कल्पचर्स को हर दिन देखते होंगे. तो नाउ आई वांट देवेश टू टॉक. या आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, लाइक कोई डाउट है, तो प्रभु मैम से पूछ सकता है. He or she can raise their hand if anyone has. इतना अच्छा बताया मैंने. इतना अच्छा बताया क्या? अच्छी बात है. वेरी गुड मैम. लिटरली ये सेशन काफी ज्यादा अच्छा था कि वैसे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टीचर बोल रहा होता है और हम लोग बोर हो जाते हैं, बट आज के सेशन में हमें कहीं भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम लोग बोर हुए. और इतना ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन था ये कि लाइक मन कर रहा था कि अभी तो अगर आधे घंटे और भी चले तो हमें बैठे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है. पहले बताना चाहिए था, बहुत सारे स्कल्पचर्स है मेरे पास. मैं आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया. लाइक ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव लगा और बोरिंग नहीं लगा बिल्कुल भी. मतलब एकदम सब कुछ फैमिलियर है. Thanks a lot. And if you have any doubts, अभी तो मे बी हेजिटेट कर रहे होंगे कि मैक्सिमम पिक्चर्स जो भी मैंने यहाँ पे पिक्चर्स डाला है वो सभी एक मिनट, कोई कॉल आ गया मेरे को. या वो सभी मैंने ही लिया है. मैंने इतने सारे टेम्पल साउथ इंडिया में कवर किया है, तेलंगाना, आंध्रा का. इसीलिए मैंने क्रेडिट्स किसी को नहीं दिया, क्योंकि वो सब मेरा ही फोटोग्राफ्स है. मैंने जो मंदिर जाकर के लिया वही फोटोग्राफ्स है. और जब भी ऐसा कुछ हमको नया मिलता है देखने को, देन एस्पिरेशन बहुत ही मिल जाता है कि लाइक अच्छा हुआ मैंने आर्कियोलॉजी पढ़ लिया. ऐसा मैंने पूरा मेरा 13 ईयर्स के अभी पढ़ाई से, डिग्री से लेकर के अभी मैं यहाँ तक की बोल रही हूँ, मुझे इतने बार ये महसूस हुआ कि अरे यार बहुत अच्छा हो गया मैंने आर्कियोलॉजी ले लिया. ऐसा कि और एक अच्छी सी बात बोलूं, जो भी हिस्टोरियंस है वो लोग 90 ईयर्स से ज्यादा रहते हैं. आप लोग एक बार गूगल करके देखिएगा, कोई भी हिस्टोरियन हो 70-80 ईयर्स जरूर रहेंगे. ठीक है, वेस्टर्न हो या इंडियन हो. अच्छा, क्योंकि टेंशन फ्री है. वी आर अप्रिशिएटिंग द आर्ट एंड वी आर एंजॉइंग द आर्ट. वेयर आप केमिस्ट्री ले लो या डॉक्टर्स जो हार्ट के ऑपरेशन करते हैं उन लोगों को भी हार्ट अटैक होकर के आजकल चले जाते हैं. तो हिस्टोरियंस जो है आराम से अपना काम कर सकते हैं. एंड आई एम रियली एंजॉइंग माई हिस्ट्री, enjoying my Indian art and architecture, everything. And Akshit, I thank you once again that you gave me such a beautiful opportunity to contact. अगर सभी लोग अपना वीडियोस ऑन कर लेते बहुत ही अच्छा होता था, मगर मैंने कुछ स्माइली फेसेस देखा. तो या नाउ एटलीस्ट 1 or 2 स्टूडेंट्स, देवेश को छोड़ के, अक्षित को छोड़ के एंड अमित को छोड़ के, मुझे बताइए कि क्या मिला आपको ये क्लास में. 1 स्टूडेंट फीडबैक तो होना चाहिए मुझे. मैम या निहारिका is talking now. Yeah. नमस्ते मैम. मैम रियली बहुत अच्छा सेशन था, और आपने जो पंच तत्वा से धीरे धीरे आते आते जल, वायु, अग्नि, अर्थ का जो एक मतलब डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे वास्तु के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं, वो सबसे ज्यादा नया था.
और आपने जैसे हर एक स्क्रिप्चर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, अपना जो आपका देखने का नजरिया है और उसको हम पर्सनली कैसे देख सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल था। और अब मेरे अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा है कि नेक्स्ट टाइम वेरी गुड, बिकॉज माय सीनियर्स वर्कड हार्ड। हाँ, मेरा सीनियर्स मुझको ऐसे ही सिखाए थे, इतना ही डेडिकेशन से और इतना ही जोर से। जब मैं कभी बात करती तो मेरे घर में बोलते कि तुम किसी को मारने जा रही हो, ऐसा बात कर रही हो। मगर वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम लोग ना ओवरवेल्म हो जाते हैं, तो दैट कम्स आउट नेचुरली। सो वो वाला अगर मैं यहाँ पे उपस्थित 35 स्टूडेंट्स में से 3-4 लोगों को दे दूं और 3 साल और हिस्ट्री पढ़ने का, या वेरी गुड। मैम, अब हम जब आगे से कोई ऐसा आर्किटेक्चर देखेंगे तो आप कुछ अलग नजर से देख पाएंगे, या पर्टिकुलरली वुमेन का जो स्कल्पचर होता है, वुमेन का स्कल्पचर को देखने का नजरिया बदलना चाहिए, सभी को बदलना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना न्यूडिटी देखते हैं, एरोटिज्म देखते हैं और बोलते हैं कि अरे यार कैसा स्कल्पचर बना दिया, और लड़कियों को तो मना भी कर देते हैं कि आप मत देखो। मैं कभी कभी साउथ इंडियन टेम्पल जाकर के स्कल्पचर्स का फोटोज लेने देखती हूँ तो सब लोग मेरे को अलग से देखते हैं कि लड़की लड़की का फोटो ले रही है, वो भी स्कल्पचर्स ऐसा रहते हैं, एरोटिक है, तो भी अपना स्टडी का काम है कि हमको पिक्चर लेना पड़ेगा। तो नजरिया बदलना चाहिए कि ओनली ऑर्नामेंटेशन देखो, फैशन देखो, कॉस्ट्यूम देखो। हमने कैसा एवोल्यूशन पीरियड देखा है, वो हंट्रेस को पहले ओनली लीव्स के साथ दिया गया है, फिर बाद में थोड़ा कपड़ा दिया गया है, हैंडमेड कपड़ा, फिर बाद में होयसला आते आते पर्ल का बना हुआ एक अच्छा सा गर्डल्स के साथ सजा रहे हैं। तो आप लोग ये एवोल्यूशन देखो, नहीं तो ये हैंड ऑर्नामेंट्स देखिए। पूरा जितना हमको ना मॉडर्न पादुकास देखोगे तो इतना इतना हील्स होंगे, इतने इतने डिजाइन मिलेंगे आपको। तो जब भी दाक्षी अगर साउथ इंडिया का ट्रिप प्लान कर रही है तो मुझे बता दीजिए, आई विल बी योर टूर गाइड। ओके। हाँ, साउथ इंडिया का प्लान कर दीजिए। मैं पौंडीचेरी में हूँ फिलहाल, एंड आई वांट यू पीपल टू कम टू पौंडीचेरी और तमिलनाडु, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल टू कम टू, एंड एनी ग्रुप साइज कितना भी हो मैं लेके जाऊंगी मंदिर देखने के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसा मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो वी विल लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। अक्षित ने मेरे को यही प्रॉमिस किया था कि मैम आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम लोग मिलकर साथ बढ़ेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू स्टॉप दिस एंडेवर। ये जो वॉलंटियर्स जो भी है, सजेशन है, एक दीदी के जैसा सजेशन ये है कि जब भी एक सेशन स्टार्ट होता है, प्लीज डू नॉट लेट योर डायरेक्टर और people ask you or please switch on the cameras, or the person talking to you, please switch on the cameras. I understand it is not that easy, but please, that is really helpful. Yeah, revisit temples and observe them for new perspective. Thank you so much. यार मैं बोली ना 3-4 लोग, और मेरा हिंदी इतना खराब है, मेरा साउथ इंडियन हिंदी है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कभी जेंडर डिफरेंस नहीं पता चलता है मेरे हिंदी में। एंड देन इवन देन thanks for your patience and presence until the 1.5 hour class. Thanks a lot. Then I can request you to conclude the class now, Devesh. Thanks a lot. Thanks one and all. No, ma'am, your Hindi is so wonderful, so beautiful. ऐसा ही बोलना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। क्लास खत्म होने के बाद तो इतना ही बोलना पड़ेगा। या क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, एवोल्यूशन प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस। माय हिंदी इज अंडर प्रोसेस। So thanks a lot again. Learning never stops. That's why. Yeah, that never stops. तो आप सभी अपना आर्ट को एंजॉय करें, बस मैं वही चाहती हूँ तुम लोगों से। और पढ़ाई तो वैसे भी हो जाएगा, डिग्री तो वैसे ही हो जाएगा, जॉब आ जाएगा, शादी हो जाएगा, सब हो जाएगा। बट व्हेन यू आर इनटू आर्ट, एंजॉय आर्ट, एंजॉय आर्ट। इट्स नॉट लाइक फोर्सफुली स्कल्पचर को मत पढ़ो, अधिष्ठाना, उपपीठा, गोपुरा, शिखरा, आमलका, नागरा, द्राविड़ा, वैसा ये सब्जेक्ट के इसमें मत पढ़ो। पहले सब्जेक्ट को लव करो, प्यार करिए, तब यू विल डेफिनेटली आंसर्स वही आ जाएंगे अपने आप। कॉन्शियसनेस में बैठ के लिखवाएंगे आपके साथ आंसर्स। ओके, थैंक्स अ लॉट। नाउ इट्स 1.5 hour and thanks again Akshit and Devesh. Bye. Thank you, ma'am. And now I would like to end our program by Vande Mataram. So let you all join me. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Shyamalam, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Suprajotsana Pulakita Yamani, Pullakusumit Drumadal Shobhani, Suhasini
सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं. Thank you all for joining this session. Thanks again Yeah, and a lot. bye. Thank you everyone. Jai Dakshini.